Good evening, everyone. Hope you all are good. I am Mrs. Vaishali Avinash Chavan, Indology Foundation. Welcome renowned scientist and erudite speaker Dr. Sen Pathakji. Dr. Pathakji is lifetime professor emeritus as well as distinguished professor cell biology and genetics department of genetics in University of Texas MD Anderson Cancer Center USA. He is also professor genetics at the Graduate School of Biomedical Science, professor of medicine at College of Medicine, senior scientist adjunct in the Department of Genetics at South Foundation for Biomedical Research, San Antonio, Texas, USA, visiting professor of genetics at the University of Sao Paulo, Faculty of Medicine at Ribeirão Preto, Brazil. He is internationally recognized scientist for his pioneering research work first on mammalian population cytogenetics and lately on human and other mammal cancer genetics. Once again, I welcome you, sir, and thank you for your kindness in sparing your precious time for the benefits of remote rural areas of India on the topic of cancer. I welcome to everyone, audience, Lalit Mishra sir, and other renowned panelists, and our co-founder, Praveen Mishra sir. Sen Pathak ji sir, please go ahead. Thank you. It's a great honor to have you. Before I pass it on to you, sir, I would like to let you know and audience something about the Vendology Foundation. That we actually started our journey for making grand narrative of Indian history and Indian civilization. And for that, we organized around over 50 webinars, conferences, and every time we had one or the other real researcher to talk about his researches. And we remained focused on resolving problems of our Indian history. Long-standing problems like after Indus Valley, when in the Ganga Yamuna Valley, urban civilization started. When we started becoming civilized again, when temple construction started in India, because it is said temple construction started in India only in the Gupta period. But our guest, Professor D.P. Tiwari ji, he excavated in Kanpur region and found a Mauryan era Shiv temple. So that is the first time discovery, and that discovery was disclosed in one of the conferences. Similarly, Vedic, since the Vedic period, we had technology for polishing the stone sculptures, and our history, which is there in our books in universities and colleges that is taught, says the technology for polishing the stone sculptures, stone pillars have been imported from Persia to India. So in one of the such conferences, Professor our Gurudev Dinbandhu Pandey demonstrated that since the Vedic period, Rig Vedic period, we had that technology, and it is documented in the Kalidasa's literature in Raghuvans and Shakuntalam, Abhigyan Shakuntalam. In both the Sanskrit scriptures, the technology is described by a poet. And when a poet describes something, that means everybody knew about the technology. So this is all those areas where India was getting belittled by our historians. Something was as a solution coming from our side. Coming to the science side, when our Honorable Prime Minister happened to make a speech referring to the head surgery of Ganesha in our Puranic mythology, so he attracted a lot of reaction, lot of criticism from all walks of the life here, from every quarter of the science. So what we did, we knew that it is in India, the surgery started in India. So what we did, in the Constitutional Club, we collaborated with Pakistan's Taxila Museum,
and collected the photographs of the surgical instruments, 17 surgical instruments, which are still there in the Taxila Museum. And once United Nations Director General of Archaeology visited the Taxila Museum, and Pakistan government with proud demonstrated it. So we requested them to please, you cannot give us the instrument, but please give the genuine photo of those instruments. So we demonstrated those 17 surgical instruments, which were discovered by Sir John Marshall in 1930s. So 1930s, it is 2020 last year when we demonstrated. 90 years passed, but same dispute continued in India. So this is how we resolved it. I invited journalists from the Hindu, Indian Express, in Times of India and others. So they did not make a news, but after that event, not a single news report came in our newspapers that India did not have surgery. So Sustrata surgical instruments, those were discovered by Sir John Marshall. We were the first in India to display. So this is how we started our journey. Then COVID came. So on the COVID, we had 5 sessions on the COVID, one by one. Each session is around 90 minutes of duration. First session happened in which 2 authors, Indian authors, जिन्होंने सबसे पहले, for the first time in the world, they published book on the coronavirus, and their books are uploaded and referred to by World Health Organization in their portal. So one of the authors was Professor Dr. Rajesh Parikh ji from Jaslok Hospital, Mumbai. He is the director internal medicine over there. उन्होंने जी उन्होंने उनकी एक किताब थी, उन्होंने मुझे he gave me honor to write a review of his book. So that I am doing. अभी 2-4 दिन में अपलोड कर देंगे उनकी जो रिव्यू है बुक पर. और दूसरे थे प्रोफेसर डॉक्टर सक्सेना. So Saxena is from the Lucknow Sanjay Gandhi Medical College. He heads biochemistry division over there. उन्होंने भी एक किताब लिखी जो स्प्रिंजर और कुछ बड़े-बड़े पब्लिशर्स के थ्रू प्रमोट हुई है. उसके 36,000 डाउनलोड्स ही सेट कि उतने उनकी किताब के हुए. तो इन दोनों ऑथर्स को लेकर के हमने अपना पहला सेशन किया. और पहले सेशन में आई एम वेरी प्राउड टू से हमारे साथ में थे रिस्पेक्टेड डॉक्टर निर्मल गुप्ता. In the first session, he said, advised Indian medical doctors and practitioners जो कोविड में डील कर रहे थे, Indian hospitals को, whether it is AIIMS or all, they should not remain limited to use of ventilators. Rather, for the critical cases, they should also consider the machine called ECMA. So ECMA is a kind of hard and long machine. So that was never used in India, but he was the first to advise to save Indian life. And we had some journal research papers published in journal that Japan started using in the same time in December and January this machine, and there was almost very lower degree of mortality in the Japan. So that was the report. So our doctors, they were the first. Our panelists were first to propose these things. So that the pride we have for when we ventured out into the science, medical science, etc. So in the second conference, there was another suggestion from the Dr. Rajesh Parikh side. He said India should go for the booster doses in the March, when nobody in India was talking that the vaccines are not sufficient to generate the required amount of immunity. But he was the first to talk about booster dose. So these, and after he said in a month's time, the companies, those who are producing vaccines, they started talking of the booster dose. So this kind of leadership opinions have been produced in our platform. And when there was a discussion in India that how we are going to tackle the COVID spread in the villages area. So I had an idea that in villages we have quite a large force of large workforce of our ASHA workers and Anganwadi workers. So from the foundation side, Vaishali ji also floated the idea. From foundation side, we put this opinion forward that Prime Minister should capitalize on these forces, Anganwadi and the ASHA workers.
surprisingly, after 2 weeks, Dr. Gyaneshwar Chaubey informed us that Prime Minister has referred to strengthening the capability of the ASA workers. So before our Niti Aayog or the policy making institutions were coming to certain conclusions, Indology Foundation was able to give such valuable suggestions which are implemented in India. So that is by the God's grace, that is where we do stand. And today we have exclusive honor to have you, sir, directly from the scientist who devoted his life for the cancer researches, Honorable Dr. Shane Pathak ji. मैं एक बात और कहता हूँ उसके पहले दिन आई वुड पास ऑन द बेटन टू डॉक्टर पाठक जी दैट आई थिंक तीन साल हुए 3 years ago 3 साल पहले एक दिल्ली में एक जैन मंदिर है, मेरे फ्रेंड उसमें है वहां पर, और उनके जो संचालक हैं राजकुमार जैन, वो हमारे भी पैट्रन हैं। तो वहां पर प्रोग्राम हुआ था, उसमें डॉक्टर पाठक थे। डॉक्टर पाठक ने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताया कि हम नारी शक्ति, मातृशक्ति क्यों शब्द प्रयोग करते हैं, उसका कारण है कि माँ से हमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया मिलती है, और ये उनका रिसर्च पेपर था। ओके, ज्ञानेश्वर चौबे आ गए तो आई वेलकम हिम, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे जी। ओके, तो उन्होंने उसमें बताया करीब 10 या 12 साल पहले उनका रिसर्च पेपर था, जिसमें उन्होंने इस बात को लिखा था, एंड आई एम वेरी हैप्पी, कंटेंट एंड प्राउड दैट Dr. Pathak has shared his paper with me that we are going to publish in our portal. So वहाँ से I got attracted towards him। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो आज सब बताएंगे, तो I won't take much time. And because we have another opportunity to have Dr. ज्ञानेश्वर चौबे जी, तो उनके कम से कम 10 पेपर्स, रिसर्च पेपर्स तो उनके स्टूडेंट्स के इसी बीच कोविड में छप चुके हैं। तो आई वुड रिक्वेस्ट हिम टू आफ्टर डॉक्टर पाठक जी इज थ्रू विथ हिज प्रेजेंटेशन, डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे कुछ हमें बताएं अपने बारे में, अपनी रिसर्च, क्योंकि टीचर्स वो होते हैं जो स्टूडेंट्स तैयार करते हैं। डॉक्टर ज्ञानेश्वर चौबे जी ने इतनी कम एज में, इतने कम टाइम में भी इतने एबल स्टूडेंट्स तैयार किए BHU में कि वो लोग रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। तो अभी उनकी टीम का रिसर्च पेपर आया थोड़े दिन पहले, तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं हमें। एंड नाउ आई पास इट ऑन टू ऑनरेबल डॉक्टर पाठक जी। थैंक यू सर। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सबसे पहले मैं वैशाली जी को धन्यवाद देता हूँ, इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मेरे लिए दिया, मैं इस लायक हूँ नहीं। और देन आई वांट टू थैंक प्रोफेसर ललित मिश्रा जी ऑफ इंडोलॉजी फाउंडेशन हु हैज इनवाइटेड मी to give this talk on cancer. Actually, the title which I have written over here is a modified title by Mishra ji. He suggested this title. So I come from a small village in Azamgarh. Now my village Sururpur is in the district Mau, and I come from a farmer's family. And throughout my early education, I went to village schools here and there, and then I went to Azamgarh, and from DAV College, I finished my higher secondary. And then I was brought to Banaras Hindu University by a very well-known person, Dr. Chandrabhan Pandey. And I will not tell more about him, but this is my little relationship with the College of Indology. I was brought to Banaras. That time, Dr. Pandey was doing his PhD in College of Indology. And through him, I was able to have the blessings of Dr. Rajbali Pandey, Dr. Agrawal, Vasudev Saran Agrawal. So I had the opportunity to read some of their papers also. Now, I finished my BS class in botany, zoology, chemistry with honors. And then I wanted to do master degree in botany, but I had 2 marks less, so I was not admitted in botany. I did not want to go to chemistry because the smell I didn't like. So I was dumped in zoology, that is Pranishastra. And this is the picture
taken in 1980. This is Professor S.P. Ray Chaudhary. He was that time chairman of the Department of Zoology. He was brought there by founder of Zoology Department, Professor A.B. Mishra, Awadh Vihari Mishra, who founded the Zoology Department in BHU, and he himself was brought from Oxford University by Madan Mohan Malviya ji. So I joined S.P. Ray Chaudhary as a master degree student, did my PhD under him. And this is T.C. Shu, who was nominated 3 times for Nobel Prize, a professor in MD Anderson Cancer Center. He is no more with us. But these 2 people have taught me not only science, they have taught me how to be a human being. And this picture was taken in MD Anderson Cancer Center when S.P. Ray Chaudhary visited MD Anderson to deliver a lecture. I want you people to take a look in the background of this laboratory. This laboratory belongs to T.C. Shu, this person. Look at the condition of the lab. This is the world famous lab. His lab used to be considered as Mecca of mammalian cytogenetics. And from all over the world, people wanted to come to his laboratory and work. So this is the condition of his lab, his laboratory. Now, I had the opportunity to visit Somnath Temple also. And this is my spiritual guru, Swami Gyananand Saraswati. There I met Dr. Swami, and I was introduced to him, and he just raised his hand to shake hand with me. I immediately put my hand like this. Then he started laughing. He said, "You have been in America for so many years, but you still follow the Indian conditions, traditions." I said, "Sir, in my body, every gene is coming from Indian saints, swamis, sages. So my genes are from India. It cannot be changed." Now, they have taught me not only science, but they have taught me how to be a human being. Life is a long journey between being human being and being a human. Let us take at least a step daily to cover the distance. I am still trying to become a human being. Now, as I was introduced, my education was in Banaras Hindu University. And this is the temple. I still have blessings of Malviya ji. We have a big organization in Houston. We have Banaras Hindu University Alumni Association. We still celebrate our program with Madhur Manohar Ativa Sundarya Sarvvidya Ki Rajdhani. Now, I want to tell my story. I did my master degree in zoology, and luckily, I don't deserve, but luckily I stood first class first. I got gold medal and everything. After finishing my PhD, I was working on some field work because my professor told me that in India, once you get your PhD, your research period is over. You have received everything, all the knowledge. But that was not true. After my PhD, he used to send me to field work and collect animals and work on their chromosomes. Anyway, I did that, and my master degree was in 63, and PhD was in 67. And I came to Houston in early January of 1970. But before that, what happens, since there were 6 positions in the zoology department advertised for assistant professor. And I asked my professor, should I apply? And he said, why not? I applied. But let me cut the long story short. I was not appointed. All my 6 classmates were appointed over there who were much, they were second class, mostly could not perform well in the interview, but I was not appointed. So why I was not appointed? I asked my professor later on, 9 months later, and he told me, Pathak, every expert wanted to appoint you first because of your publication, your position and everything. But I told them that don't appoint my student, appoint the student of my younger professors. I want to keep a harmony in the department. So he sacrificed his own student.
But in my luck, it was written that I have to come to MD Anderson. All those friends of mine, they have retired. Some of them have retired from life, but I'm still active. So sometimes in life, you get a setback, but don't get depressed. Maybe God has something better for you. That lesson I received from that, not being appointed in zoology department. Before coming to MD Anderson, I was working on the base of Himalayas, and I collected some mice, and I found that in mice, the chromosome number was 22. Till then, all over the world, people knew that the chromosome number in mouse is 40. So I wrote a short note and sent to MD Anderson to Dr. Shu because he was publishing a journal called Mammalian Chromosome Newsletter. So he noticed that who is this boy from India who is writing a paper with such a beautiful chromosome preparation and saying that mouse has 22 chromosomes. So actually I was discovered with this mouse that has 22 chromosomes, and I discovered the 22 chromosomes in mouse, and I was in true sense discovered by T.C. Su because of this report. I came to Houston in Baylor College of Medicine and worked there for 1 year on a Welch Foundation fellow, and then crossed the street, came to MD Anderson because Dr. Shu asked me if I want to work under him. So that was the greatest night for me. I could not sleep even I joined his laboratory. So when I joined his laboratory, MD Anderson Cancer Center has only 2,000 people working there on cancer, only on cancer, no other disease. And this is the first building you are seeing where I worked. And I joined this hospital sometimes May 10th, 1972. Now this hospital has become huge. This is the north campus of this hospital. You are seeing all these buildings, they belong to MD. सर एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, थोड़ी हिंदी भी हमारी हिंदी ऑडियंस के लिए भी। अच्छा, बीच में ये पूरा बिल्डिंग आप देख रहे हैं जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, ये सारा MD एंडरसन कैंसर सेंटर है। अब प्रीवियस बिल्डिंग आपने देख लिया है, एक बिल्डिंग थी। जी जी, ऑल राइट सर, ऑल राइट जी। ये बिल्डिंग सारी कनेक्टेड हैं ओवरब्रिज से भी, बट दिस इज वन कैंपस। Now MD Anderson has mid campus, it has south campus, and those campuses are covered by more than 50 mini buses. So they are running all over morning till evening and connecting here. So this is the largest cancer center on earth. There are 22,000 people, physicians, scientists working in this hospital. The only disease called cancer. Now, the mission of this hospital is to make cancer history. And if you remember, on Cancer World, there is a red ink cut. So I want to tell you a very interesting story. Ramdev Baba came to MD Anderson 3 times, and I arranged his lecture also. Last time when he came, I took him to the president, and president gave him his card, and Cancer World was cut with red ink. So Ramdev Baba told me in Hindi that this is पुराना कार्ड है, किसी ने इसको काट दिया है। तो हमने उनको बताया कि नहीं, इसको काटने के लिए बहुत हाई लेवल मीटिंग हुई है। इसको काटने का मतलब ये है टू मेक कैंसर हिस्ट्री, दुनिया के हर कोने से कैंसर को मिटा देना है, इसलिए काटा गया है। Then he understood what is the meaning of that. So this is the main goal of MD Anderson, to make cancer history. Now हम तो एनिमल के ऊपर काम किए हैं। मेरा PhD वर्क है चमगादड़ के ऊपर, जो मैमल हैंग करता है अपसाइड डाउन। लेकिन जब डॉक्टर शू के लैब में आया तो ये भी मैमल के ऊपर भी काम करते थे, तो इनके पास ये आर्डवाक था। इसका मैंने क्रोमोसोम किया, इट हैज 20 क्रोमोसोम। दिस मैमल इज फ्रॉम अफ्रीका। देन जिब्रा है, जिब्रा में 44 क्रोमोसोम है। इन बिटवीन वी हैव ऑल अदर काइंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स इन मैमेलियन स्पीसीज। So the reason I'm showing you this slide is that we have worked on aardvark to zebra, A to Z, and the chromosomes of mammalian species. And here I can tell you, I don't have the picture, लेकिन आपको बता दें कि इंडिया बहुत यूनिक है इस मामले में कि इंडिया में एक डियर मिलता है, इंडियन मुंजॉक, जिसमें सबसे लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर है, दैट इज 2n is equal to 6 क्रोमोसोम। मेल फीमेल में 6 क्रोमोसोम है, मेल में 7 क्रोमोसोम।
सबसे लोएस्ट क्रोमोसोम नंबर वो इंडिया में है। हाईएस्ट क्रोमोसोम नंबर मैमल में मिलता है 92, वो पेरू में है, एक क्रैब ईटिंग रोडेंट है। जब मैं डॉक्टर शू का लैब ज्वाइन किया तो मेरे को उन्होंने 7 एनिमल दिए, रैट। ये एक रैट है, इसका पिक्चर आप देख रहे हैं, ह्यूज रैट है, और उसका क्लिप करना था, ये थोड़ा सा टिश्यू निकाल के उसको कल्चर करना था, उसका क्रोमोसोम बनाना था, उसका रिलेशनशिप देखना था। सो आई वर्कड ऑन दैट डे एंड नाइट, and there were 3 animals I could not match the karyotype. This is one of that animal. You can see every chromosome is single over here, and the binding pattern of this arm I am showing over here is equivalent to the binding pattern of this arm over here. The binding pattern of this arm of this chromosome is equivalent to this chromosome. So this was a hybrid actually. There were 3 hybrids animals. So with lot of courage, I went to tell T.C. Shu that there are 3 hybrid animals, and he got very mad on me. This is the first project I was handling. He said there are no hybrid animals. I said, sir, these are the animals. I'm telling you, these are hybrid animals. He said, no, no. तो उन्होंने कॉल किया जो एनिमल सप्लायर था उसको, और एनिमल सप्लायर से पूछा उन्होंने कि तुमने हाइब्रिड एनिमल दिया है? तो उन्होंने कहा कि 3 एनिमल उसमें हैं। पहले में फर्स्ट का टो कटा हुआ है, दूसरे में दूसरे का, तीसरे में तीसरे का कटा हुआ है, और वही 3 एनिमल मैंने क्रोमोसोम से आइडेंटिफाई किया। Then Dr. Shu told me, Sen, you are not going anywhere. You are staying in MD Anderson. So I made a statement, chromosomes never lie. Based on chromosomes, I can identify any species, or if you give me an animal from any species, I can tell you this is the chromosome number in this. Now this हम आपसे बता रहे हैं इसलिए कि इसका बहुत उपयोग हमने कैंसर एरिया में किया है, इसलिए थोड़ा बैकग्राउंड आपको हम दे रहे हैं। अब आप देखिए कि एक नेचर में स्पीसीज जो सरवाइव करती है, जो एनिमल्स हैं, उनके में और कैंसर में क्या रिलेशनशिप है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज एंड ओरिजिन ऑफ कैंसर। हमारे साथ आप चलिए एक कंट्री सफारी गिर जो फॉरेस्ट है उसमें चलिए। वहां एक झुंड है डियर्स का मान लीजिए, और उसमें एक मामा डियर जो है एक बेबी डियर, एक बेबी को पैदा करी है, एक फान पैदा हुआ है। तो फान का पर्पस क्या है? उस फान का पर्पस है इट वांट्स टू सर्वाइव। तो सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए उस फान को, उस छोटे डियर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा नेचुरल प्रेडेटर्स से। वहां पर लायंस है, टाइगर्स है, हाइना है, ये कार्निवोरस एनिमल्स हैं, उसको खा जाएंगे तुरंत। तो उससे बचने के लिए उसको क्या करना है कि जल्दी से जल्दी गेटअप होना है और हर्ड के साथ दौड़ना है। तो अगर उसने वो कर लिया, प्रोटेक्ट कर लिया नेचुरल प्रेडेटर से, तो अब स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए फूड चाहिए एंड वाटर सप्लाई चाहिए। इसके लिए एनिमल माइग्रेट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जब वो माइग्रेट करते हैं, मान लीजिए इसको भी फुलफिल कर लिया एनिमल ने, ये ह्यूमन भी माइग्रेट करते हैं, मैं भी माइग्रेट किया हूं यहाँ पर टू हैव गुड अपॉर्चुनिटीज। तो ये माइग्रेट एनिमल करते हैं जहां उनको हरी घास दिखती है, जहां पानी मिलता है, घूमते रहते हैं। इट इज ए वेरी वेल नोन फैक्ट। और स्पीसीज को सरवाइव करने के लिए स्पीसीज प्रोलिफिक ब्रीडर होनी चाहिए। अगर वो बच्चे पैदा नहीं करेगी तो सरवाइव नहीं कर सकती। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक जो हैं हमको कैंसर में भी मिलते हैं। कैंसर सेल्स जो हैं, जो हमारे बॉडी में पैदा होते हैं, तो उनका एक ही एम है सर्वाइव करना। तो सबसे पहले वो सर्वाइव करना उनको होता है, तो उनको हमारे इम्यून सिस्टम से बचना होगा। जितने मैक्रोफेजेस हैं, किलर टी सेल्स हैं, डेंड्राइटिक सेल्स हैं, जो हमारी इम्यून सिस्टम को बनाते हैं, उससे कैंसर सेल को बचना होगा। तो वो है उसके नेचुरल प्रेडेटर्स। तो मान लीजिए कैंसर सेल उससे बच गए, तो अब उनको क्या चाहिए? उनको भी भोजन चाहिए। सो दे नीड प्लेंटी ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स एंड तो कैंसर सेल को ग्रोथ फैक्टर्स चाहिए बॉडी में सरवाइव होने के लिए। तो इसके लिए कैंसर सेल्स क्या करते हैं? वो नई नई आर्टरीज एंड वेन्स बनाते हैं, और उसके जरिए वो न्यूट्रिएंट्स जो है अटैक करते हैं नियर बाई सेल से। और उसके बाद जब एक ऑर्गन में उनको फूड सप्लाई खत्म हो जाती है,
तो वो दूसरे ऑर्गन में जाते हैं, माइग्रेट करते हैं। उस माइग्रेशन को हम वर्ड यूज करते हैं मेटास्टेसिस। जैसे किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो जब तक प्राइमरी ऑर्गन में कैंसर सेल रहते हैं तब तक पेशेंट नहीं मरता। मरता कब है? जब मेटास्टेसिस होती है, जब कुछ सेल्स वहां से निकल के डिस्टेंट ऑर्गन में जाते हैं, वहां डिवाइड करते हैं, तब जाके पेशेंट मरता है। तो ये माइग्रेशन जो है विद इन द बॉडी होती है, उसको हम मेटास्टेसिस बोलते हैं। तो पहले लिम्फ नोड में जाते हैं कैंसर सेल्स, लिम्फ नोड से निकल के फिर हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाते हैं, और फिर पूरे बॉडी में हर जगह जाते हैं। जहां उनको न्यूट्रिएंट ज्यादा मिलता है वहां सेटल हो जाते हैं, वहां ग्रो करते हैं। और कैंसर सेल को प्रोलिफेरिक सेल डिवीजन भी होना चाहिए। अगर वो डिफरेंशिएटेड कैंसर सेल है तो वो इट इज अ गुड न्यूज फॉर द पेशेंट। लेकिन अगर पुअरली डिफरेंशिएटेड है, इसका मतलब उसमें अभी भी सेल डिवीजन बहुत होना है, दैट इज अ बैड न्यूज फॉर द पेशेंट। तो ये जो सिमिलैरिटीज है स्पीसीज की, वो सिमिलैरिटीज पूरी कैंसर सेल में है। और ये मैंने डेवलप किया, ये आइडिया बहुत पहले डेवलप किया, करीब 300-400 बरस पहले। और मैंने उसके ऊपर लेक्चर दिया यहाँ पर, रूजवेल पार्क मेमोरियल इंस्टीट्यूट है बफलो में, बहुत बड़ा, वहां पर। फिर इसको मैंने एक चैप्टर लिखा और उसका टाइटल है क्रोमोसोम अल्टरेशन इन स्पीसीएशन एंड न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये किताब में पब्लिश है, जिसको टीकाराम शर्मा ने एडिट किया है। तो एक थोड़ी हिस्ट्री में बता दूं कैंसर की आपको, कि दिस पेपर वाज रिटन इन 1996 बाय लेट प्रोफेसर जॉर्ज डिपेंडोपौलोस from Harvard Medical School. And in that paper, he writes the first ever recorded instance of human tumors and of their treatment with surgery or by applying ointment containing arsenic to them was made in a Hindu epic called Ramayana. ये गलत हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन इनके अनुसार रामायण में आया है। And this is not written by any Indian. This is written by a very well-known professor who actually taught my president also in Harvard Medical School. So now I'm coming to a very simple definition of what is cancer cell and what is normal cell. Normal cell हमारे बॉडी में जो होते हैं, they exhibit ordinarily growth control. वो within रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशंस में डिवाइड करते हैं। एक सेल 2 में डिवाइड करता है, 2 सेल 4 में जाता है, अपना फंक्शन करते हैं, उसके बाद मर जाते हैं। अगर उनका कोई डीएनए डैमेज होता है इन बिटवीन तो उसको रिपेयर भी कर लेते हैं वो। एंड दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स ओनली व्हेन नीडेड। अब यहाँ एक चीज मैं बता दूं कि हर ऑर्गन में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल डॉर्मेंट बैठे रहते हैं, जब जरूरत होती है तो स्टेम सेल डिवाइड करेंगे और नया सेल बना देते हैं, पुराने सेल मर जाते हैं। एंड नॉर्मल सेल इन आवर बॉडी अंडरगो जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ। अपना फंक्शन करने के बाद वो मर जाते हैं। जैसे हमारे जो ब्लड सेल्स हैं बोन मैरो में बनते हैं, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में आ जाते हैं और कार्ड सेल्स अपना फंक्शन करती हैं, उसके बाद वो मर जाती हैं। उसके बाद फिर नए सेल आ जाते हैं हमारे बॉडी में और वो फंक्शन करते हैं। ये नॉर्मल कंट्रोल, जो नॉर्मल सेल है अंडर कंट्रोल सेल डिवाइड करते हैं। लेकिन कैंसर सेल दे डू नॉट फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कैंसर सेल क्या करते हैं? दे ग्रो अनकंट्रोल्ड। और उनका स्ट्रक्चर भी देख लीजिए, उनका साइटोप्लाज्म देखिए, न्यूक्लियस देखिए कैसा है, कभी कभी बाई न्यूक्लिएट भी हो जाते हैं। एंड दे डिस्प्ले अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन। नॉर्मल सेल एक सेल 2 में जाता है, कैंसर सेल कभी कभी 2 में जाएं, कभी 3 में जाएं, कभी 4 में जाएं, कभी कितने सेल बन जाते हैं। दे आर अनेबल टू परफॉर्म देयर स्पेशलाइज्ड फंक्शन। अगर टेस्टिस में कैंसर सेल हुआ तो टेस्टिस में जो सेल डिवीजन होना चाहिए, मायोसिस उसको बोलते हैं, वो नहीं होता, वहां माइटोसिस होने लगती है, तो स्पेशलाइज्ड फंक्शन नहीं कर सकते। They grow beyond the boundary of normal tissue. Outgrowth हो जाता है उनका। I will show you some pictures later on. And cancer cells fail to die at genetically regulated time because cancer cells program themselves to survive. This is the only function there.
अब थोड़ा इंडिया के बारे में बताएं आपको कि इंडिया में, ये हमारा रिसर्च नहीं है, यहाँ का नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट जो है अमेरिका का, पूरे दुनिया का रिकॉर्ड रखता है, वो बता रहे हैं कि इंडिया नेक्स्ट 15-20 ईयर्स में दुनिया में नंबर 1 हो जाएगा इन द इंसिडेंस ऑफ कैंसर। इतना ज्यादा कैंसर बढ़ रहा है इंडिया में इस समय, और मोर देन 70% ऑफ ऑल कैंसर्स इन इंडिया आर डायग्नोस्ड एट वेरी एडवांस स्टेज। हर कैंसर की 4 स्टेज होती है, 1, 2, 3, 4। अगर आप पहली स्टेज में, दूसरी स्टेज में कैंसर को पकड़ लें तो आप क्योर कर सकते हैं, लेकिन अगर 3rd और 4th स्टेज में कैंसर पहुंच गया तो आप क्योर नहीं कर सकते। यू कैन सिंपली मेंटेन द पेशेंट एज लॉन्ग एज ही सर्वाइविंग। तो इंडिया में मोस्टली जो कैंसर पेशेंट होते हैं वो बेचारे लेट स्टेज में आते हैं। जैसे किसी को कैंसर हो गया तो छोटे डॉक्टर के पास चला जाएगा, वो छोटा डॉक्टर अगर सर्जन है तो उसका ऑपरेशन कर देगा धड़ से, और अननेसेसरी सर्जरी करने से मेटास्टेसिस डेवलप हो जाती है। तो अननेसेसरी सर्जरी नहीं करना चाहिए। अगर मैं सिम्टम्स बाद में आपको दिखाऊंगा कि क्या सिम्टम्स हैं कैंसर के, उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये इंडिया में बहुत जरूरी है कि पब्लिक एजुकेशन हो कैंसर की। और इंडिया में सबसे ज्यादा कैंसर जो है वो हेड एंड नेक का है, इसोफेजियल कैंसर है, और अभी गॉल ब्लैडर का कैंसर बहुत कॉमन हो गया है। गॉल ब्लैडर का कैंसर अमेरिका में एकदम नहीं होता है, इसलिए उसकी कोई दवा नहीं निकली है। और गॉल ब्लैडर का कैंसर सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में और बिहार में होता है। उसका कारण क्या है, नोबडी नोज। उसके ऊपर रिसर्च करना है। नाउ दिस फ्रेज हेल्थ इज वेल्थ, ये इसकी देन भी इंडिया से है। मैं बता रहा हूं बिकॉज अपने हॉस्पिटल में हम लेक्चर देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं दीपावली। आप शायद इंडिया में किसी हॉस्पिटल में दीपावली सेलिब्रेट नहीं कर सकते, परेशानी आपको होगी, लेकिन यहाँ हम क्रिश्चियन डोमिनेटेड हॉस्पिटल में करते हैं। जब हमने शुरू किया करीब 18 वर्ष पहले, तो प्रेसिडेंट ने हमसे पूछा कि सेन तुम जस्टिफाई कर सकते हो कि इस दीपावली का क्या रिलेशनशिप है कैंसर से? तो हमने उनको बताया कि हम दीपावली जो है फेस्टिवल ऑफ लाइट, इसको हम सेलिब्रेट इसलिए करते हैं कि जब हमारे देवियों ने, लक्ष्मी जी ने, दुर्गा माता जी ने किसी डीमन को मारा था, व्हेन वी हैव विक्ट्री ओवर डीमन, तब हम सेलिब्रेट करते हैं। और इन एमडी एंडरसन वी आर फाइटिंग द माइटी डीमन कॉल कैंसर, उसके ऊपर हमको विक्ट्री चाहिए, इसलिए ये मनाना यहाँ जरूरी है। और उस दिन से हमको ग्रीन लाइट मिली है, हर साल हम मनाते हैं दीपावली एमडी एंडरसन कैंसर सेंटर में। नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन एट ऑल। 1 घंटे 1.5 घंटे का प्रोग्राम करते हैं। तो उसमें जनरली लेक्चर हमको देना ही पड़ता है। तो हमने एक चीज बताया है कि जो फर्स्ट डे दीपावली का धनवंतरी, जिसको धनतेरस हम आप बोलते हैं, उस दिन हम लोग इंडिया में कोई कॉस्टली मेटल खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, ये खरीदते हैं। लेकिन उसी दिन लॉर्ड धनवंतरी भी अपीयर हुए हैं और नेक्टर लेके अपने हाथ में, जब समुद्र मंथन हुआ है। तो लॉर्ड धनवंतरी जो हैं, ही इज द हिंदू गॉड ऑफ मेडिसिन। एक्चुअली वहां से शुरुआत होती है हेल्थ इज वेल्थ का। तो इसलिए जो फ्रेज हमारा हेल्थ इज वेल्थ दिया गया है, ये हिंदू स्क्रिप्चर से हमको आया है, ये हमको मानना जरूरी है। अब थोड़ी बात आपको बताना चाहते हैं कि हमने एमडी एंडरसन ज्वाइन किया था, उसमें डॉक्टर जो पहले फाउंडर प्रेसिडेंट थे डॉक्टर ली क्लार्क, उन्होंने हमको अपॉइंट किया वहां पर। तो वो जब रिटायर हुए, उसके बाद चार्ल्स लेमेटर आए, उसके बाद डॉक्टर जॉन मेंडलसन आए, हु इज राइट सिटिंग ओवर हियर। तो जॉन मेंडलसन से मैंने कहा कि इस समय एमडी एंडरसन में 5 प्रोफेसर है जो जूलॉजी डिपार्टमेंट बीएचयू का यहाँ काम कर रहे हैं। जॉन मेंडलसन डिड नॉट बिलीव, he said it cannot be, so I mentioned the name this. So 2011 में मैं इनको इंडिया ला रहा था कॉन्फ्रेंस में, तो इन्होंने कहा कि सेन आई वांट टू विजिट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उस समय डॉक्टर लालजीत सिंह थे वाइस चांसलर, जिनको मैंने क्रोमोसोम सिखाया है जूलॉजी डिपार्टमेंट में। लालजी मेरे से 6 साल जूनियर थे।
तो लाल जी को मैंने कॉल करके बोला कि लाल जी आप रहना, उस समय वाइस चांसलर हो लेकिन फिर भी टाइम निकाल कर रहना, मैं अपने प्रेसिडेंट को ला रहा हूं। लाल जी बोले ठीक है। हम गए सब लोग, तो लाल जी से मुलाकात हुई जॉन मेंडलसन की। Then all of a sudden John Mendelsohn told me he wants to visit zoology department। अब इनको zoology department में मैं ले गया, मुझको पता नहीं था कौन चेयरमैन है, क्या है, कैसे है। तो ये लेडी वहां पर चेयरमैन थी, डॉक्टर मिसेस चतुर्वेदी, वेरी जूनियर टू मी, बट शी वाज सो नाइस। उनको मैं गया और मैंने अपने को इंट्रोड्यूस किया कि मेरा नाम सेन पाठक है, मेरे साथ मेरे प्रेसिडेंट आए हुए हैं और उनकी श्रीमती जी है, एंड दे वांट टू सी द डिपार्टमेंट। So she was very cordial. She said, "Yes, Dr. Pathak, we know your name very well." तो उस बेचारे ने हमको चाय दिया और बिस्कुट दिया, वही उस समय अवेलेबल था, because she did not have enough time to prepare। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने ऑफर किया चाय और बिस्कुट, हमारा प्रेसिडेंट लास्ट ईयर मरा है कैंसर से, तब तक वो जिंदा था और याद करता था कि कैसे हमको दिया गया चाय और बिस्कुट। So what you give to a person is not that important, but how do you give? That is very important। तो ये zoology department है। Then हमारे प्रेसिडेंट ने हमसे कहा कि I want to see that classroom where you were student। देखिए वो बैठे हैं हमारे क्लासरूम में और उसी बेंच पर पूछा किस बेंच पर बैठते थे। This is the place I used to sit, and he is sitting by my side, and asked a friend of mine to take photograph, and he has published this picture in a book actually। तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि जो हमारी एजुकेशन बीएचयू में हुई थी बहुत अच्छी हुई थी, और यहाँ प्रेसिडेंट भी बहुत लाइक करता है, सारे प्रेसिडेंट लाइक करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द कैंसर। कैंसर दो तरीके का होता है, एक फैमिली में रन करता है, उसको बोलते हैं फैमिलियल कैंसर, और उस फैमिली में बर्थ डिफेक्ट भी होता है, फनी लुकिंग बच्चे भी पैदा होते हैं। आई विल शो यू सम पिक्चर्स लेटर ऑन। तो फैमिलियल कैंसर जो है मोस्टली 5% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता। 95% कैंसर्स आर कॉल्ड स्पोरेडिक कैंसर्स। स्पोरेडिक का मतलब है कि फैमिली में किसी को नहीं हुआ है लेकिन लाइफस्टाइल से एक कैंसर हो जाता है, तो उसको बोलते हैं स्पोरेडिक। और यहीं पर मैं एक चीज और आपको थोड़ा बता देना चाहता हूं कि बर्ट वोगलस्टीन, हु इज अ वेरी वेल नोन साइंटिस्ट इन अमेरिका, he published a paper in 2015 that bad luck is the cause of cancer। और इस पेपर को पब्लिश करने के कारण पूरे अमेरिका में इतना उसका क्रिटिसिज्म हुआ बर्ट वोगलस्टीन का, जिसका ठिकाना नहीं। बट इन ए वे ही वाज राइट, बट इट इज नॉट द बैड लक। आई हैड चेंज्ड दैट बैड लक इनटू बैड कर्मा, एंड आई रोट ए आर्टिकल आल्सो इन 2018। तो बैड कर्मा ये लोग समझते नहीं है। कर्मा जो होता है केवल हाथ से ही नहीं करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। अगर मन से हम बार बार सोचेंगे अरे हम तो कैंसर हो जाएगा, हमको कैंसर हो जाएगा, हमको कैंसर हो जाएगा, वी स्टार्ट सिक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स इनसाइड द बॉडी, दे डैमेज आवर डीएनए एंड वी डेवलप कैंसर। या किसी के बारे में हम बुरा सोचें तो आई एम डूइंग अ बैड कर्मा। मुंह से बोल के अगर किसी के बारे में हम कुछ कहते हैं देन आल्सो आई एम डूइंग बैड कर्मा, और हाथ से जो करते हैं वो तो करते ही है। तो वी डू कर्मा इन 3 ways, मनसा वाचा कर्मणा। नाउ आई एम गोइंग टू शो फॉर दोज हु आर नॉट इन बायोलॉजी एज सच कि हम एक सिंगल सेल से पैदा हुए हैं। एक सिंगल सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, और के बारे में मैं नहीं बताऊंगा। मिश्रा जी ने थोड़ा देर पहले माइटोकांड्रिया के बारे में बताया था। ये माइटोकांड्रिया है, इट इज पावर हाउस ऑफ द सेल, और माइटोकांड्रिया केवल मां से हमारे बॉडी में आती है, चाहे हम मेल हो चाहे फीमेल हो। इसलिए हमारे अंदर जो शक्ति आती है वो मां से आती है। इसलिए दुर्गा हमारी शक्ति स्वरूपा माता जी है। और सबसे पहले हम बोलते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, मां फर्स्ट। और आज हम जेनेटिक्स में सीख रहे हैं कि हमारे बॉडी में मैक्सिमम नंबर ऑफ जीन्स जो एक्टिव हैं वो मां से हैं, बाप के जीन बहुत कम एक्टिव है। ये ह्यूमन का क्रोमोसोम है, ये तो क्रोमोसोम कट करके पेड किया हुआ है, और इसको बैंडिंग पैटर्न इसमें दी गई है। देखिए इस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं कि उसमें ये बैंड आ जाते हैं। तो इसमें एक क्रोमोसोम माँ का है, एक बाप का है, एक माँ का है, एक बाप का है, एक माँ का है, एक बाप का है। अभी हम बता नहीं सकते कि इसमें कौन माँ का है कौन बाप का है।
और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX, और मेल में क्या होता है कि एक एक्स इज रिप्लेस बाय वाई क्रोमोसोम, स्मॉल वाई क्रोमोसोम। वो वाई क्रोमोसोम जो है फादर से आता है। तो एवरी क्रोमोसोम इज पेयर्ड। अब देख लीजिए सारे के सारे एकदम बाइंडिंग पैटर्न आइडेंटिकल है, देख लीजिए आप एकदम से। तो इन्हीं क्रोमोसोम के रीअरेंजमेंट से हमको कैंसर होता है, किसी भी तरीके का कैंसर इनके रीअरेंजमेंट से होता है। अब यहाँ आपको एक बता रहे हैं कि ये एक ह्यूमन बीइंग का क्रोमोसोम है, इसमें 3 कॉपी क्रोमोसोम 21 की हो गई। देखिए ये जो इसको बोलते हैं, जिन इंडिविजुअल में 3 क्रोमोसोम होते हैं ट्राइसोमी 21, उनको बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। उनका फिनोटाइप वो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, का गोला स्ट्रक्चर होता है, किसी भी रेस में पैदा हो, दे आर मेंटली रिटार्डेड। इनको इनवेरिएबली हार्ट का ट्रबल होता है, कैंसर भी होता है, ठीक है। और आजकल के साइंटिस्ट यूरोप में और अमेरिका में बोलते हैं कि हमने ये सिंड्रोम आइडेंटिफाई किया है, एडवर्ड सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, ये सिंड्रोम, वो सिंड्रोम, दैट इज बंच ऑफ बलोनी। सबसे पहले ह्यूमन सिंड्रोम का डिस्क्रिप्शन आता है रामचरितमानस में। आप देखिए जब भगवान शंकर की बारात जा रही है, उनके जो गण हैं उनका डिस्क्रिप्शन आप पढ़िए, उस सारे के सारे ह्यूमन सिंड्रोम है। इस पर मैंने एक लेख लिखा है, कहीं पब्लिश होगा जल्दी ही। So this is from a male child who is Down syndrome and you can see the Y chromosome right over here. अब मैं बताने जा रहा हूं, जब मैंने क्रोमोसोम करना शुरू किया कैंसर का, तो सबसे पहले एक कैंसर हम लोग लिए जिसको बोलते हैं रेटिनोब्लास्टोमा, जो छोटे बच्चों में होता है, आंख में रेटिनल सेल्स में होता है। तो उनका जो ट्यूमर लिया मैंने, तो हर कैंसर में स्ट्रक्चरल एनामली और न्यूमेरिकल एनामली होती है। क्रोमोसोम नंबर 46 नहीं रह जाता, वो ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब हमने रेटिनोब्लास्टोमा पेशेंट का ट्यूमर लिया, उसका क्रोमोसोम बनाया, तो उसमें देखिए सारे क्रोमोसोम रीअरेंज हैं इधर से उधर। तो मेरे मन में आया कि इनका ब्लड भी मैं लूं। तो ब्लड लेके देखा मैंने, तो एक क्रोमोसोम मेरे को बहुत छोटा मिला। देखिए क्रोमोसोम 13 है। तो इस 13 क्रोमोसोम में ही रेटिनोब्लास्टोमा का जीन मैप्ड है। तो उस समय मैंने, जो प्रोग्राम हेड थी लेडी एक, उससे मैंने कहा कि we can use the blood culture from individuals and we can identify what kind of cancer they can have in future. तो उस लेडी ने मेरे को कहा क्या कि you are comparing apple with oranges। ये लेडी अभी रिटायर हुई है, और ये मैंने 1976 में कहा था उसको, और आज 2010 में पेंटर ने आइडेंटिफाई किया है सर्कुलेटिंग ट्यूमर्स इन द ब्लड। इट हैज बिकम ए liquid biopsy and all over the world people are following this। ये देखिए, ये सबसे पहले मैंने 1976 में कहा था, और आज पेंटल ने 2010 में देखा है कि ब्लड के अंदर कैंसर सेल सर्कुलेट होते हैं। इसको हम लिक्विड बायोप्सी बोलते हैं। बट ही इज ओनली फाइंडिंग दिस ट्यूमर सेल्स इन द पेशेंट हु हैव ऑलरेडी कैंसर। वी कैन आइडेंटिफाई इवन दोज पीपल हु आर एसिम्प्टोमेटिक, उनको कैंसर नहीं हुआ है, और उनको आइडेंटिफाई करके हम बता देते हैं कि इनको इस तरीके का कैंसर होने वाला है। I'll show you some pictures. Now let me describe to you some family. एक फैमिली है जो कैलिफोर्निया में कुछ मेंबर रहते हैं, कुछ ह्यूस्टन में रहते हैं, और इस फैमिली में कैंसर रन करता है, काफी लोगों को हुआ है। तो इस फैमिली की कहानी, मैं उसका पेडिग्री आपको दिखा दे रहा हूं। ये पेडिग्री है उस फैमिली की। इसमें आप देखिए, इसमें 4 भाई है, 1 2 3 4 एक भाई है, एक बहन है। बहन मर गई स्टमक कैंसर से, और लोग भी मरे हैं, सारे लोग। ये भाई ह्यूस्टन में रहते हैं, और ये भाई के अंदर इनकी जीन सिक्वेंसिंग भी हुई है। इनके में आइडेंटिकल जीन इस भाई में भी है, इसमें भी है, इसमें भी। ये भाई मर चुका है, ये भाई मर चुका है, ये भाई मरने वाला है। दिस ब्रदर इज हेल एंड हार्टी with all these genetic mutations, but he is hale and hearty। कारण क्या है? ये भाई सात्विक है, वेजिटेरियन है, और कोई मीट सिगरेट ये सब कुछ नहीं करता। ये सारे भाई मीट सिगरेट पीने वाले, खाने वाले हैं ये, इसलिए इनको कैंसर बहुत जल्दी हो गया। सब स्वाहा हो गए, ये अभी बचे हुए। सो इससे हमको ये रिजल्ट मिलता है कि
if you are inheriting a defective gene, mutated gene, but if you change your lifestyle, if you lead a sattvic life, you can bypass the deleterious effect of that mutated gene in many cases. ये हमको लेसन मिलता है। और इस भाई का हम लोगों ने क्रोमोसोम किया है, देखिए 20 बरस पहले, जीन सीक्वेंसिंग के पहले, और मेजॉरिटी ऑफ सेल्स में नॉर्मल क्रोमोसोम है, लेकिन कुछ सेल में 2% सेल में देखिए डाइसेंट्रिक क्रोमोसोम मिला है, रीअरेंज क्रोमोसोम मिला है इस भाई में, जो भी एसिम्प्टोमेटिक है, उनके कोई कैंसर नहीं हुआ, लेकिन उनके में ये सेल प्रेजेंट है अभी, बट ही इज हेल एंड हार्टी। तो दूसरी फैमिली एक ह्यूस्टन की और बता दें आपको कि मेरा एक कलीग था, ही वाज प्रोफेसर, और जब मैं ये टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा था अबाउट 40 years ago, तो उसने मेरे को बोला कि सेन हम अपना ब्लड नहीं देंगे तुमको, कि तुम मुझे बताओ कि मुझको क्या कैंसर होने वाला है। मैंने कहा डोंट गिव मी, उसका नाम एलन था, डोंट वरी। लेकिन 9 महीने के बाद वो रोता हुआ मेरे ऑफिस में आया प्रोफेसर, और बोलता है कि सेन आई एम सो सॉरी। तो मैंने कहा क्या बात है, व्हाई यू आर क्राइंग? तो बोलता है उसके लड़के को कैंसर हो गया है, अब वो अपना ब्लड देना चाहता है मेरे को क्रोमोसोम देखने के लिए। तो इस प्रोफेसर का ब्लड मैंने किया, और ब्लड में मेरे को क्या मिला, ह्यूमन क्रोमोसोम 5 में डिफेक्ट मिला 2 to 3%। ही इज हेल एंड हार्टी, नो प्रॉब्लम। तब मैंने उसको सजेशन दिया तुम जाओ कोलोनोस्कोपी कराओ, क्योंकि कोलन कैंसर का जीन जो है क्रोमोसोम 5 पर मैप्ड है। वो गया, कोलोनोस्कोपी करवाया, और उसके कोलन में 9 पॉलिप्स मिले, दे वर ऑल एडेनोमेटस पॉलिप्स। वो पहली स्टेज होती है कोलन कैंसर की, जब पॉलिप्स को काट के निकाल दिया गया और उसको बताया गया कि तुम मीट खाना बंद करो, फल खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, और आज 30-40 बरस हो गया, ही इज हेल एंड हार्टी। ये दूसरी फैमिली की कहानी है। तीसरी फैमिली की कहानी बता रहे हैं आपको डॉक्टर कनौजिया, जो हमारे एमडी एंडरसन में एक्चुअली ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं फिजिशियन साइंटिस्ट प्रोग्राम। हर साल हम करीब 100-200 एमडीज को ट्रेनिंग देते हैं कैसे रिसर्च किया जाता है। तो मैं वहाँ लेक्चर देता हूँ, तो कनौजिया साहब मेरा लेक्चर सुने थे, और उसके बाद वहाँ से निकल के वो प्राइवेट प्रैक्टिस में चले गए दूसरे शहर में। तो उन्होंने मेरे को एक दिन कॉल किया और बोला कि यहाँ एक भाई है, मैक्सिकन है, उसको कैंसर है, तो उसका क्रोमोसोम आप करेंगे? हमने कहा बिल्कुल करेंगे। तो बोले उसका एक बहन है, उसका एक और भाई भी है जो नॉर्मल है। हमने कहा तीनों का ब्लड भेजिए, ये मत बताइए कि किसको कैंसर है किसको नहीं है। उन्होंने ब्लड भेजा, और हमने जो कैंसर उनका क्रोमोसोम करके बताया ब्लड से, तो पता लगा कि एक भाई में क्रोमोसोम एबरेशन है। हमने कहा ये कैंसर वाला है, वो बोले बिल्कुल ठीक है। बहन में भी एबरेशन मिला, लेकिन बहन को कैंसर नहीं था। वो बोले नहीं, बहन को कैंसर नहीं है, लेकिन हमको एबरेशन मिला बहन में। तीसरा भाई नॉर्मल था। तो बात खत्म हो गई। 8-10 महीने के बाद हमारी सेक्रेटरी दौड़ती हुई आई, हम लंच में थे, हमको बोली डॉक्टर पाठक, कोई लेडी दूसरी तरफ रो रही है और आपसे बात करना चाहती है। ये 9-10 महीने के बाद की कहानी है। तो मैं उठाया टेलीफोन, तो वो लेडी रो रही है और कह रही है कि यू आइडेंटिफाइड माय मदर, यू आइडेंटिफाइड माय मदर। मैं समझ नहीं पाया कौन है, तो मैंने बोला कि डॉक्टर का नाम बताओ, तो उसने कनौजिया का नाम लिया, तो मेरे सामने पूरा पिक्चर आ गया। तो 9 महीने के बाद उसकी मदर को, जो उसमें नॉर्मल थी लेकिन क्रोमोसोमली वो डिफेक्टिव थी, उसको कैंसर हो गया। So this is a very powerful technique by which we can actually identify individuals. अब क्या होता है कि एक फिनोमेनन है जिसको बोलते हैं सेल सिलेक्शन इन विवो। इन विवो मतलब विद इन द बॉडी। तो कभी कभी कुछ लोग ऐसे पैदा होते हैं जिसमें एक सेल लाइन ना हो के 2 सेल लाइन होती है, 3 सेल लाइन होती है। जैसे डाउन सिंड्रोम में है, ये डाउन सिंड्रोम में 46XX फीमेल है, लेकिन इसमें 47 क्रोमोसोम भी कुछ सेल में मिलेगा, उसमें एक एक्स्ट्रा कॉपी 21 की हो जाएगी। ये देखिए दिखाया हुआ है यहाँ पर। ऐसे ही टर्नर सिंड्रोम होता है, उसमें एक क्रोमोसोम लेस होता है, कि एक एक्स क्रोमोसोम नहीं होता, 45 होता है। ऐसे लोगों को कैंसर होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम जो है उसमें 46 भी हो सकता है, 47 भी हो सकता है, XXY, 48 भी हो सकता है, XXXYY। ये सब कैरियोटाइप मैं आपको दिखाऊंगा। तो होता क्या है कि हम सब लोग अपनी बॉडी में प्री कैंसरस सेल बनाते हैं, लेकिन प्री कैंसरस सेल को मर जाना चाहिए, लेकिन वो मरता नहीं है किसी कारण। अगर वो सर्वाइव कर गया, वही से कैंसर हमारे बॉडी में पैदा होता है।
तो प्री कैंसर सेल को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दैट इज द टेक्निक वी आर वर्किंग ऑन राइट नाउ। अब यहां देखिए, ये क्रोमोसोम है एक ऐसी इंडिविजुअल का जिसको अननोन प्राइमरी ट्यूमर होता है। हमारे अस्पताल में 200-300 पेशेंट ऐसे आते हैं हर साल जिनको कैंसर पूरे बॉडी में फैला हुआ है। डॉक्टर नहीं जानता कि क्या कैसे ट्रीट करें इनको ब्रेस्ट कैंसर है कि कोलन कैंसर है कि रीनल सेल है, कुछ नहीं पता, अननोन प्राइमरी ट्यूमर। तो मेरा एक फ्रेंड था डॉक्टर, वो बहुत परेशान हो गया कैसे ट्रीट करें। तो मैंने कहा ब्लड दो उनका, तो उसने ब्लड दिया। ये भी 40-50 वर्ष पहले की कहानी, 40 वर्ष 45 वर्ष पहले की कहानी है। जब मैंने ब्लड किया तो पता लगा कि एक क्रोमोसोम 3 का पीस ब्रेक होके क्रोमोसोम 21 में लग गया, देखिए, और सारे क्रोमोसोम नॉर्मल है। तो बिना देखे मैंने अपने फ्रेंड को बताया कि ये जिस फैमिली से लेडी आ रही है, शी मस्ट हैव एक्सपीरियंस स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। तो हंसने लगा मेरे ऊपर, बोला कैसे तुम बता सकते हो कि वो उसको स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुआ होगा। मैंने कहा क्रोमोसोम से मैं बता देता हूँ। तो उस समय एमडी एनिवर्सरी में लोग फैमिली हिस्ट्री ऐसा नहीं इकट्ठा करते थे पेशेंट की। मैंने कहा तुम फैमिली हिस्ट्री इकट्ठा करो इस पेशेंट का। उसने इकट्ठा किया, ये फैमिली हिस्ट्री है पेशेंट की, देखिए दिस इज द प्रोबैंड। ये प्रोबैंड है जिसके अंदर 321 ट्रांसलोकेशन है, और आप देखिए कि उससे कितने स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन हुए हैं, बिना देखे मैंने बताया था। उसकी 2 लड़कियां हैं, दोनों का क्रोमोसोम मैंने किया है, उसमें भी 321 ट्रांसलोकेशन है। पहली लड़की का मैरिज है, पहला बच्चा स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन। उसकी दूसरी बहन है, वो क्रोमोसोमली नॉर्मल है, कंप्लीट 46XX। एक भाई है जिसको वो ट्रांसलोकेशन है 321, उसका पहला लड़का पैदा हुआ, मर गया, डिफेक्टिव था। दूसरा लड़का जिंदा है, उसके में 321 ट्रांसलोकेशन है। तो जिनके में ये ट्रांसलोकेशन गया हुआ है उनको में स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी होगा, और दे आर प्रीडिस्पोज्ड फॉर कैंसर। और कौन सा कैंसर होगा, मैंने लिटरेचर ढूंढा और मेरे को पता लगा कि एक कैंसर होता है मसल का, जिसको बोलते हैं लायोमायोसार्कोमा। तो ये पेशेंट जो है 25 years अर्लियर शी वाज आइडेंटिफाइड विद लायोमायोसार्कोमा। दवा हुई, ठीक हो गई, उसके बाद 25 वर्ष के बाद फिर कैंसर हुआ, पूरे बॉडी में उसका फैल गया। तो लायोमायोसार्कोमा के लिए ये जो कैरियर है इस ट्रांसलोकेशन के, दे आर प्रीडिस्पोज्ड एंड देयरफॉर दे शुड बी इवैल्यूएटेड एवरी ईयर। और बर्थ डिफेक्ट तो होता ही है, आप जानते हैं क्रोमोसोम के कारण ये बर्थ डिफेक्ट। ये बच्चा जो है गुजरात का है, बर्थ डिफेक्ट दिखा रहे हैं आपको। अब कैंसर में क्या होता है कि लाइफस्टाइल प्लेज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ये स्लाइड मैंने बारो किया है अपने एक फ्रेंड डॉक्टर भारत अग्रवाल से। अगर आप प्राणायाम करेंगे, फल खाएंगे, सात्विक लाइफ जो मसाला इंडिया में मिलता है उसका प्रॉपर यूज करेंगे, सात्विक लाइफ बिताएंगे, तो आपको कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम रहेगा। एक जमाना था कि इंडिया में कैंसर का इंसिडेंस बहुत कम था। लेकिन अगर आप ये खाएंगे, सिगरेट पिएंगे, शराब पिएंगे, वो फ्राइड फूड खाएंगे, तो क्या होंगे, बल्कि होंगे, और आपका कैंसर का इंसिडेंस बहुत ज्यादा आ जाएगा। अमेरिका में हर 3 आदमी में 1 आदमी को कैंसर है, हर 3 आदमी में 1 आदमी को कैंसर है। इंडिया में अभी भी लो है ये, लेकिन इंसिडेंस इंडिया में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि इंडिया में लोग अमेरिकन बन रहे हैं बहुत ज्यादा। इसका ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो हम लोग अमेरिका से हर अल्टरनेट ईयर इंडिया में कॉन्फ्रेंस करवाते हैं, यहाँ से सारा पैसा लगा के लोगों को बुलाते हैं वहाँ, कभी बॉम्बे में, कभी दिल्ली में, कभी गुजरात में, उड़ीसा में, बनारस में करते हैं। तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि क्लिनिकल साइंटिस्ट जो हैं, जो पीएचडी किए हुए हैं, जो एमडी किए हुए हैं या एमबीबीएस किए हुए हैं, उनको में, और जो बेसिक साइंटिस्ट हमारे जैसे हैं, इन दोनों में कोलैबोरेशन डेवलप हो। आज भी अनफॉर्चुनेटली इंडिया में एमडी जो है अलग काम करते हैं, पीएचडी अलग काम करते हैं। पीएचडी वालों को तो डॉक्टर भी नहीं कहते वो लोग, ये प्रॉब्लम है। यहाँ उल्टा है एमडी एनिवर्सन में, यहाँ पीएचडी की लेबोरेटरी में एमडी आके काम करते हैं, सीखते हैं, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं। तो ये जो मैरिज है क्लिनिकल साइंटिस्ट की और बेसिक रिसर्चर्स की, ये होना चाहिए इंडिया में। कुछ जगहों पर है, ऐसा नहीं है कि कुछ जगहों पर नहीं है, बड़े बड़े हॉस्पिटल में है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये नहीं है।
इसका कॉम्बिनेशन लाना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम कॉन्फ्रेंस हर अल्टरनेट ईयर इंडिया में करवाते हैं। अब आपको यहां बताना चाहते हैं कि कैंसर के वार्निंग सिग्नल्स क्या है। कहीं अनयूजुअल ब्लीडिंग हो, डिस्चार्ज हो, जितने भी ओपनिंग्स हमारे बॉडी में हैं, और पेनलेस डिस्चार्ज हो, ये एक सिम्टम है उसका। अगर ब्रेस्ट में लंप दिखाई दे, नोड्यूल दिखाई दे, तो ये पहचान है कि कैंसर होने का पॉसिबिलिटी है। अगर अल्सर और जो जल्दी हील नहीं होता है मुंह में, वो इसकी पहचान होती है। परसिस्टेंट इरिटेशन, कफ और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, कुछ लोगों की आवाज दब जाती है, आप जानते हैं। या खाने में किसी को तकलीफ हो रही हो, या स्वेलिंग में डिफिकल्टी हो, तो ये कुछ साइंस हैं जब कंटिन्यूअस चलते रहते हैं, इससे हमको सावधान होना चाहिए। और बाउल मूवमेंट अगर कम ऑब्वियस हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, या जो हमारे स्पॉट्स बने हुए हैं, काला काला मोल बनता है, उसका शेप साइज अगर बढ़ रहा है, घट रहा है, इससे हमको सावधान होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है, प्रोग्रेसिवली वेट लॉस होने लगता है ऑल ऑफ ए सडन। मेरे एक अंकल थे, उनका ऑल ऑफ ए सडन वेट लॉस होना शुरू हो गया, और उनकी भूख मर गई, और उनको एक्चुअली ल्यूकीमिया हुआ था। अब मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, वो गुजर गए बेचारे, उनको ये सिम्टम होते थे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इंडिया में जो है, पब्लिक एजुकेशन अबाउट कैंसर, ये होना बहुत जरूरी है। हमारे एमडी एंडरसन में एक पब्लिक एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वहाँ कुछ लोग बैठाए गए हैं, और कोई भी कहीं से कॉल कर सकता है उनको, और वहां से एक दो स्पीकर को अपने यहाँ इनवाइट कर सकता है। अपने अस्पताल में, अपने चर्च में, अपने टेम्पल में, अपने गेट टुगेदर में, अपने पंचायत में बुला सकता है उनको। वो जाके कैंसर के बारे में सिंपल लैंग्वेज में बताएंगे उनको। तो पब्लिक एजुकेशन इंडिया में लैक करता है बहुत कस के, इसको आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब ह्यूस्टन में कैसे कैसे प्रोग्राम है, हमने आपको बताया कि एमडी एंडरसन के पास एक ग्लोबल ऑन्कोलॉजी प्रोग्राम है। पूरे दुनिया में 37 कंट्रीज कनेक्टेड है, और इंडिया के टाटा कैंसर सेंटर और एक एस वैसास बेंगलोर में है वो, और दिल्ली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली में है, दिल्ली में एक और बिलरी इंस्टीट्यूट है। ये 4 कैंसर सेंटर जो है एमडी एंडरसन से एफिलिएटेड है। ये चारों जगह वही प्रोटोकॉल फॉलो होता है जो यहाँ होता है। तो ये मैंने यहाँ दिखाया है कि और हॉस्पिटल्स इंडिया के पाइपलाइन में हैं जिनको एफिलिएशन होना है, वो उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे पतंजलि पीठ है हरिद्वार में, ये दिलसाड गार्डन तो हो चुका है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में 2 अस्पताल अभी खुले हैं, उनका भी एफिलिएशन होना जरूरी है, और गुजरात कैंसर सेंटर भी इंटरेस्टेड है। तो यहाँ विद इन ह्यूस्टन हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, इसका नाम है ICAN, इंडियन अमेरिकन कैंसर नेटवर्क। उसका टेलीफोन नंबर ये है। अगर इंडिया से भी कोई पेशेंट यहाँ आते हैं, इस नंबर पर कॉल करें तो उनके लिए सारा अरेंजमेंट यहाँ किया जाता है। तो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसलेशनल कैंसर रिसर्च हम हर साल करते हैं, हर अल्टरनेट ईयर करते हैं इंडिया में, जिसको बोलते हैं हम TCR। ये कॉन्फ्रेंस वहाँ होती है। अब मैं एक 6 में बताऊंगा कि क्यों स्वदेशी होना चाहिए। स्वदेशी का मतलब ये है कि इंडियन पॉपुलेशन इज जेनेटिकली वेरी डिफरेंट फ्रॉम US पॉपुलेशन। तो जितनी दवाएं अमेरिका में बनी हैं, यहाँ पर भी गोरे लोग हैं, काले लोग हैं, उनके ऊपर दवा बनी है। तो इनमें सम केसेस काले लोगों के ऊपर जो दवा बनी है वो गोरों के ऊपर काम नहीं करती, एंड गोरों का कालों के ऊपर काम नहीं करती। और हम तो इंडिया में बिल्कुल डिफरेंट हैं जेनेटिकली, इसलिए यहाँ की जो दवाएं बहुत इफेक्टिव वहां नहीं है। दूसरा चीज कि इंडिया में जैसे गॉल ब्लैडर का कैंसर मैंने बताया, उत्तर प्रदेश बिहार में सबसे ज्यादा होता है, साउथ इंडिया में होता ही नहीं, बॉम्बे में नहीं होता, कहीं नहीं होता है। और हेड एंड नेक का कैंसर इंडिया में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि पान मसाला हम बहुत खाते हैं, टोबैको। तो इसकी सेल लाइन हमको बनानी चाहिए, और इसके ऊपर एक्चुअली कीमोथेरेपी हमको डिस्कवर करनी चाहिए, इसके ऊपर हमको दवा बनानी चाहिए। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट ने एक सेल सेंटर खोला है पुणे में। मैं वहां जाके लेक्चर दिया हूँ, वहां लोगों को बताया हूँ कि आप अपनी सेल लाइन बनाइए अपने कैंसर की, और उसके ऊपर आप दवा निकालिए, तब हमारे पेशेंट को फायदा होगा। लेकिन वहां भी ज्यादातर वो लोग सेल लाइन अमेरिका से मंगाते हैं, उसका कोई फायदा नहीं है। आप
पेपर पब्लिश कर सकते हो बहुत ज्यादा, लेकिन उसका हमारे इंडियन कैंसर पेशेंट को उतना फायदा नहीं होगा जितना आप अपने इंडियन कैंसर पेशेंट के ऊपर सेल लाइन बना के और उसके अगेंस्ट दवा निकालो, अब उसे ट्रीटमेंट दो। ये देखिए आपको, ये इंडियन पेशेंट हैं, इनको हेड एंड नेक का कैंसर है, आपको दिखा रहा हूँ एक दो। ये सब ये स्लाइड्स मेरे को शेयर की गई है, डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी हैं टाटा मेडिक हॉस्पिटल में, जो हेड एंड नेक के सर्जन हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं वो, और उन्होंने भेजा है। ये देखिए दूसरा पेशेंट है, ये हेड एंड नेक है, ये सब टोबैको खाने वाले हैं। ये देखिए टोबैको खाने वाले हैं। तो अगर हम टोबैको का कर्टेल कर दें, उसका टोबैको ना खा, जब भी मैं इंडिया में जाता हूं तो एक नई प्रोडक्ट टोबैको की निकलती है। कभी पान मसाला पराग निकलता है, कभी वो दांत साफ करने वाला निकलता है, कभी लिक्विड निकल रहा है, क्या क्या निकल रहा है। तो ये इंडिया में इसका प्रतिबंध होना चाहिए, बहुत जरूरी है। अब पब्लिक को बताना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि ये सारे फोटोग्राफ का बड़ा बड़ा ब्लो अप करके मैंने अपने गांव में भेज दिया है। हम लोग छोटा सा स्कूल बच्चों के लिए चलाते हैं गांव में 12th ग्रेड तक। मैंने मैनेजर से कहा है कि सारे पिक्चर हर क्लास में लगा दो और बच्चों को दिखाते रहना चाहिए, टीचर को दिखाते रहना चाहिए कि अगर आप सिगरेट पियोगे और ये कोई प्रोडक्ट टोबैको का लोगे तो 10 बरस के बाद 20 बरस के बाद आपको ऐसा कैंसर हो जाएगा। इसको रोकना मुश्किल है। तो अब यहाँ बता रहे हैं कि ब्लड, पेरिफेरल ब्लड लिम्फोसाइट से अभी उसमें एक टीलोमियर भी लेंथ कर सकते हैं। टीलोमियर मैं बाद में इंट्रोड्यूस करूंगा। ये क्रोमोसोम का एंड पार्ट है जो क्रोमोसोम को प्रोटेक्ट करता है, या उसका क्रोमोसोम कर सकते हैं आप। और बेस्ड ऑन द रिजल्ट वी रेकमेंड कि फूड हैबिट आपकी चेंज होनी चाहिए। आप सात्विक लाइफ स्टाइल करें तो आप डिफेक्टिव जीन आपके बॉडी में होते हुए भी यू विल नॉट डेवलप कैंसर। अब यहाँ मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लड से है, सारा ब्लड से कोलन कैंसर इस आदमी में देखिए। यहाँ देखिए ये क्रोमोसोम 5 है, ये नॉर्मल क्रोमोसोम 5 है। यहाँ 3 जीन तीन डॉट दिखाई दे रहे हैं, 3 लाइन। इसमें केवल 1 लाइन दिख रही है, 2 लाइन गायब है। इसका मतलब डिलीशन है यहाँ से। तो जिस पेशेंट में ये डिलीशन दिख रहा है, ये दिस पर्सन इज प्रीडिस्पोज फॉर कोलन कैंसर। तो अगर ये सात्विक लाइफ बिताए तो इसको कोलन कैंसर नहीं होगा, नहीं करेगा तो ही विल डेवलप कोलन कैंसर। ये ब्लड में है सारा, मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ देखिए ये भी है क्रोमोसोम 5। यहाँ क्रोमोसोम 5 टूट गया है यहाँ से, और ये क्रोमोसोम 17 में जाके अटैच हो गया। ऑल अदर क्रोमोसोम्स आर नॉर्मल। ये ब्लड से लिया गया है। ये इंडिविजुअल प्रीडिस्पोज्ड है कोलन कैंसर के लिए, तो उसको केयरफुल होना है। ये है जो मेलानोमा, जो स्किन कैंसर होता है। लकली इंडियन लोगों को स्किन कैंसर कम होता है क्योंकि मेलानोफोर जो काला थोड़ा ब्राउन कलर है वो प्रोटेक्ट होता है। लेकिन अमेरिका में जो व्हाइट है उनको ये मेलानोमा बहुत ज्यादा होता है क्योंकि एक्सरे आती है और रेडिएट करती है, और उसी रेडिएशन से उनका क्रोमोसोम टूटता है। तो मैं ये मेलानोमा के ऊपर दिखाया था। एक क्रोमोसोम 6 जो है कल्प्रिट है इसमें। तो एक मेरे यहाँ एमडी था, वो मेरे काम के ऊपर बड़ा हंसता था, बोलता है क्रोमोसोम कुछ नहीं करता है। वो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट था, बोलता क्रोमोसोम कुछ नहीं करता है। तो एक बार क्या हो कि उसकी बीवी को ही कोलन कैंसर हो गया, तब उसकी हालत खराब हुई। तब मेरे को बोला सेम, कैन यू लुक इनटू हर क्रोमोसोम्स। हमने कहा ठीक है। तो अब मैंने ये उसी का क्रोमोसोम है, उसकी बीवी का। अब देखिए XX है यहाँ पर, और यहाँ क्रोमोसोम 6 टूटा हुआ है, 7 में है। उस दिन से वो ही बिकेम स्टांच फॉलोअर ऑफ माय ऑब्जर्वेशन। ये अगेन 30-40 वर्ष पहले की बात है। तो हर कैंसर का एक स्पेसिफिक क्रोमोसोम है जो डिफेक्टिव होने से उसको कैंसर होता है। ये है प्रोस्टेट कैंसर। यहाँ क्रोमोसोम 3, क्रोमोसोम 10 में टूटा हुआ देख रहे हैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट 14 का टूटा हुआ है, यहाँ जाके लग गया है। ये नॉर्मल 10 है। ये सारा ब्लड में मैं दिखा रहा हूँ आपको। अब मैं दिखा रहा हूँ, काफी सारा है बट आई विल नॉट शो यू टू मेनी स्लाइड्स। अब मैं दिखा रहा हूँ कि इंडोमेट्रियल ट्यूमर, जो हमारे इंडिया में गर्भाशय का ट्यूमर जो है ना, ये बहुत ज्यादा होता है लेडीज में। तो ये हमको प्राइमरी ट्यूमर मिला। एक इंडियन लेडी है, उसका प्राइमरी ट्यूमर हमारे सर्जन ने दिया यहाँ से, और उसका ट्यूमर का मैंने क्रोमोसोम किया तो हम उसको 3 कॉपी इस क्रोमोसोम की मिली। देखिए क्योंकि सब क्रोमोसोम नॉर्मल है, 3 कॉपी इसकी मिली। लेकिन इसका बैंडिंग पैटर्न आप देखेंगे तो ये मिरर इमेज है इस आर्म की। कितने बैंड इसमें है, वही बैंड यहाँ है। ये नॉर्मल क्रोमोसोम इसके। तो
ये इसको बोलते हैं आइसोक्रोमोसोम 1q, ये मिला, और उसके हर सेल में मिला हमको, वो अलग अलग सेल से निकाला गया है, देखिए हर सेल में मिला। ये इसके प्राइमरी ट्यूबर में मिला। तो मैंने इस सर्जन से कहा कि मेरे को इसका ब्लड दो, मैं आई वांट टू प्रूव दैट इन हर ब्लड क्रोमोसोम 1 विल शो ए ब्रेक। तो सर्जन बोलता है कि ब्लड लेके क्या करोगे, वो भी उसी पुराने ढंग का आदमी था। तो लकली उसने दिया ब्लड। जब ब्लड मैंने लिया इस पेशेंट का, अब मेरा प्रेडिक्शन था कि क्रोमोसोम 1 टूटेगा तभी ऐसा क्रोमोसोम बन सकता है। तो जब ब्लड मैंने लिया तो ब्लड में दिखाया, ये देखिए टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है, ये दूसरे सेल में टूटा हुआ है नंबर 1, यहाँ टूटा हुआ है, यहाँ टूटा हुआ है। 4% मेटाफेजेस में उसके ब्लड में टूटा हुआ मिला। तो आप चाहे ब्लड से ट्यूमर में जाए, ट्यूमर से ब्लड में जाए, इट डज नॉट मैटर। बेस्ड ऑन दिस यू कैन आइडेंटिफाई इंडिविजुअल हु इज प्रीडिस्पोज। कुछ और इसको आगे बढ़ाया है हम लोगों ने। अब ये फैमिली है जो म्यूटाजन सेंसिटिव फैमिली है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो म्यूटाजन, चाहे वो केमिकल हो, चाहे रेडिएशन हो, चाहे कुछ ऐसा हो, वो ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। कुछ लोग ज्यादा सेंसिटिव नहीं होते हैं। ये इंडिविजुअल वेरिएशन होता है। इस फैमिली की स्टडी हम लोगों ने करी और ये प्रो एंड है, देखिए। और 3 जनरेशन हम लोगों ने स्टडी करी है इसकी। ये पेपर पब्लिश है। इसमें हम लोगों ने टेलोमियर मेजर किया है। हम इसको डिटेल नहीं बताएंगे क्योंकि आई विल गिव अनदर टॉक ऑन टेलोमियर एंड एजिंग। मिश्रा जी ने बोला है फ्यूचर में हम बताएंगे। लेकिन ये 2 भाई बहन है, देखिए इनकी उम्र है 28 वर्ष और बहन की उम्र है 25 वर्ष। इनका टेलोमियर बहुत रिड्यूस हो गया है। इसका मतलब कि दे आर इन डेंजर एक्चुअली। दोनों सिगरेट पीने वाले हैं, शराब पीने वाले हैं। इनको कहा गया है कि ये करना बंद करो, तुम बहुत जरूरी, नहीं तो बहुत जल्दी तुमको कैंसर हो जाएगा। तो ये पेपर मिश्रा जी ने पढ़ा है। आई हैव रिटन दिस पेपर फॉर ए बुक in gerontology. Now, how common is this cancer? Cancer is a disease of old age. आप सरप्राइज होंगे इस स्टेटमेंट को सुन के कि छोटे बच्चे को भी कैंसर हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, गलत नहीं है। जब हम बोलते हैं कैंसर इज ए डिजीज ऑफ ओल्ड एज, एज मीन्स एज ऑफ द सेल दैट इज प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ दैट इंडिविजुअल। एक 5 बरस का बच्चा है, उसकी बॉडी में जो सेल है वो 80 बरस का हो सकता है, 90 बरस का हो सकता है, उसमें कैंसर होगा। तो हम सेलुलर एज की बात करते हैं, बायोलॉजिकल एज की बात नहीं कर रहे हैं। ये इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। इस पर हम अलग बोलेंगे क्योंकि इससे डिफरेंट टॉपिक ऑल टुगेदर। और इस समय देखिए इंडिया और चाइना में कैंसर बहुत कस के बढ़ रहा है। लाइफस्टाइल इज द मेजर रिस्क फैक्टर फॉर कैंसर इंसिडेंस। और कभी कभी जो कीमोथेरेपी दी जाती है उससे क्या होता है कि एक कैंसर तो ठीक हो जाता है, लेकिन 2-3 बरस के बाद कुछ पेशेंट में दूसरा कैंसर पैदा हो जाता है बिकॉज ऑफ ट्रीटमेंट। तो सेकेंड कैंसर पैदा हो जाता है। तो जो कीमोथेरेपी है, इट इज ए पॉइजन। वन हैज टू बी वेरी केयरफुल अबाउट द यूज ऑफ दैट कीमोथेरेपी। अब यहाँ खाने पीने की थोड़ी बातें आई हैं कि कैंसर सेल सर्वाइव इन एसिड एनवायरनमेंट एंड मीट ईटिंग इज एसिडिक। इसलिए मीट जो ईटर हैं उनको सबसे ज्यादा कोलन कैंसर होता है, जान लीजिए। और शुगर इज ए कैंसर फीडर। इसलिए जो लोग बहुत मोटे होते हैं, आजकल इंडिया में मोटापा बहुत बढ़ रहा है, इसलिए कैंसर का इंसिडेंस भी बहुत बढ़ रहा है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट के लिए क्या होना चाहिए कि हमको होलिस्टिक ट्रीटमेंट देना चाहिए, क्योंकि कैंसर इज ए डिजीज ऑफ माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। इसके लिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट होना चाहिए। तो आज जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं पूरे दुनिया में, वो सिम्टम को ट्रीट कर रहे हैं, सिस्टम को नहीं ट्रीट कर रहे हैं। हमारा जो आयुर्वेद है वो सिस्टम को ट्रीट करता है, सिम्टम को नहीं। सिम्टम तो आ ही जाता है उसमें, लेकिन आज की एलोपैथी जो है वो सिम्टम को ट्रीट करती है, सिस्टम को नहीं। इसलिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है। इसलिए होलिस्टिक ट्रीटमेंट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। एक पॉइंट हम बता चुके हैं आपको, आई डोंट हैव टू गो। स्ट्रेस, किसी भी तरीके का स्ट्रेस हो आपको, फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, सोशल इंटरेस्ट हो, अचीवमेंट का स्ट्रेस हो, पोजीशन का स्ट्रेस हो, इट कॉजेज एट्रिशन ऑफ द टेलोमियर। हम दिखाएंगे आपको लिटिल बिट लेटर। टेलोमियर रिड्यूस हो जाता है आपका। टेलोमियर रिड्यूस हुआ, इसका मतलब इनस्टेबिलिटी शुरू हो गई और क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट शुरू हो गया आपके बॉडी पे, और उससे कैंसर हो जाएगा आपको। तो स्ट्रेस मत लीजिए आप।
4-5 बरस पहले दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी इंटरनेशनल, वो सारे ऑन्कोलॉजिस्ट इंडिया के जुटे हुए थे, डॉक्टर परीख भी थे वहां पर, तो उन्होंने हमको इनवाइट किया था, हम गए वहां पर। तो वहां मैंने देखा कि श्री श्री रविशंकर जी को भी उन लोगों ने इनवाइट किया है, बड़ी खुशी की बात। तो रविशंकर जी लेक्चर दिए और उन्होंने बताया ठीक से कि स्ट्रेस लेने से कैंसर होता है, लेकिन हम तो उसका इफेक्ट सेलुलर लेवल पर जाते हैं, सिंगल क्रोमोसोम लेवल पर स्टडी किए हैं। तो ये सच्ची बात है कि स्ट्रेस होने से कैंसर होता है, लेकिन वो कैंसर कैसे होता है, क्योंकि क्रोमोसोम टूट जाता है, क्रोमोसोम के टूटने से होता है। तो ये सच्ची बात है कि स्ट्रेस से हमको बचना चाहिए। अच्छा, कैंसर सेल्स आर डिस्ट्रॉयड और हमारा इम्यून सिस्टम भी बहुत वीक हो जाता है जब स्ट्रेस होते हैं। तो सो कैंसर सेल्स डू नॉट हैव एनी अदर पर्पस। वो क्या करते हैं, केवल न्यूट्रिएंट खाते हैं, डिवाइड करते हैं, स्प्रेड करते हैं, और डिवाइड करके वो जिंदा रहना चाहते हैं। दे आर वेरी सेल्फिश, और उसके कारण पेशेंट जो है मर जाता है। अब स्ट्रेस causes attrition of telomere and accelerated aging. Age is a primary risk factor for developing cancer disease. Cancer is a disease of old age. इसको हम कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब हमको जल्दी क्या पता लगा है, विद इन फ्यू ईयर्स हम लोगों ने पता लगाया है, and this information is not known to many doctors in India, कि हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल 2 तरीके का सेल डिवीजन होता है। जो सोमैटिक सेल है उसमें जो क्रोमोसोम सेल डिवाइड करते हैं, तो जितना क्रोमोसोम उनका है वो इक्वल नंबर ऑफ डिवीजन होता है, 46 में गए। लेकिन जो हमारे गोनेड हैं, टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस मेल में, ओवरी फीमेल में, वहां जो डिवीजन होता है सेल डिवीजन, उसको बोलते हैं मायोसिस। तो मायोसिस में जो हमारे एग और स्पर्म बनते हैं, वहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, हैप्लॉइड नंबर हो जाता है। और फादर में एक्स बेयरिंग, वाई बेयरिंग 2 तरीके के जीन स्पर्म बनते हैं। और फादर जो है वही डिसाइड करता है कि जो बच्चा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। लेकिन गांव में अनफॉर्चुनेटली फीमेल को ही लोग कर्स करते हैं कि तुमने ही बच्चियां पैदा करी, तुमने ही बच्चियां पैदा करी। फीमेल रिस्पॉन्सिबल नहीं होती, मेल रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि 2 तरीके के स्पर्म पैदा करता है। तो एनीवे, लेटली हम लोग देख रहे हैं कि कुछ ऐसी जीन है जो मायोसिस में उनको एक्टिव होना चाहिए, वो ट्यूमर में एक्टिव हो गए हैं। कोई ट्यूमर हमारा लंग का ट्यूमर है, किडनी का ट्यूमर है, वहां पर देखते हैं कि वो जीन एक्टिव है। तो वहां क्या हो गया है कि एक मिक्स सेल डिवीजन कैंसर सेल में होना शुरू हो गया। इसको बोलता है मियोमाइटोसिस। इसके ऊपर हम लोगों ने 2016 में एक बहुत बड़ा पेपर लिखा है, उसको हम नहीं दिखाने जा रहे हैं यहाँ पर। हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में आपको दिखाएं कैसे सेल डिवाइड करते हैं, मल्टीपोलर, ये वो, तो सारा उसमें दिखाई देगा। सो ये जितने फिनोमेनन यहाँ दिखाई लिखे हुए हैं, उसमें समहाउ टेलोमेयर इज इन्वॉल्व। अब एक स्टेटमेंट 2018 में मैंने दिया था कि कैंसर ओरिजिनेट्स इन द ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल। ये मेरा ही स्टेटमेंट नहीं, इसके पहले काफी लोगों ने दिया है, काफी लोगों ने ये स्टेटमेंट दिया है। इसका कुछ रीजन है देने का। जब ये मैंने दिया तो हमारे एक चेयरमैन ने कहा कि सेन, you can make any kind of statement, you are one of the most secured professor in MD Anderson, but he did not believe in my statement, but now everybody believes that the chairman is no more in this world, he passed away 2 years ago। लेकिन अब सब लोग इसको आइडेंटिफाई मानते हैं इस चीज को। तो MD Anderson has pioneered multidisciplinary care। इसमें क्या होता है कि एक पेशेंट का जो ट्रीटमेंट यहाँ चलता है, उसमें ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, पैथोलॉजिस्ट होता है, सर्जन होता है, रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट होता है, जेनेटिसिस्ट होता है, और इस सारे स्पेशलिस्ट मिल के एक ग्रुप मीटिंग करते हैं। देन दे डिसाइड अबाउट द ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर ए पर्टिकुलर पेशेंट। एक आदमी डिसाइड नहीं करता है। इंडिया में आप चले जाओ, कान खोल के काफी लोग बैठे हुए, एक डॉक्टर बैठा है, वो सब कैंसर के लिए अकेला डिसीजन ले लेता है। दैट इज नॉट द वे इट शुड बी डन। ऐसा एक ग्रुप मीटिंग होना चाहिए। ग्रुप मीटिंग में हमारे सारे डॉक्टर्स इकट्ठा होते हैं, तब एक पेशेंट के लिए वो डिसाइड करते हैं कि इनको व्हाट शुड बी द प्रोटोकॉल फॉर ट्रीटमेंट। सो प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी डिसीजन सपोर्ट एक ग्रुप है MD Anderson में, इन्वॉल्व इन द डेवलपिंग प्रिसीजन मेडिसिन फॉर ईच टाइप ऑफ कैंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने ये बताया कि कैंसर ओरिजिनेट्स इन दी ऑर्गन एंड टिश्यू स्पेसिफिक स्टेम सेल, तो ये मेरे चेयरमैन थे फिडलर,
उन्होंने बोला कि यू आर द मोस्ट सिक्योर प्रोफेसर, यू कैन मेक स्टेटमेंट, बट ही डिड नॉट बिलीव, बट आज दुनिया बिलीव करती है उसको। ओके, होता क्या है आपको ब्रीफली बता रहा हूं कि हर आर्गन में स्टेम सेल होते हैं। स्टेम सेल क्वाइसेंट बैठे रहते हैं वहां पर, जब उनको जरूरत होती है तो डिवाइड करेंगे। तो उनको क्या होता है कि इंटरनल फैक्टर्स, हमारे बॉडी में बड़े सारे केमिकल सिक्रीट होते हैं, अगर उनका अमाउंट ज्यादा हो गया, कम हो गया, या किसी सोच के कारण कोई केमिकल का अमाउंट बढ़ गया, जैसे HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में सिक्रीट होता है, या ट्यूमर निक्रोसिस फैक्टर सिक्रीट होता है, उनका अमाउंट अगर बढ़ गया तो वो क्या करेंगे, हमारे स्टेम सेल को डैमेज करेंगे, उनके क्रोमोसोम को तोड़ेंगे। या बाहर का एक्सटर्नल फैक्टर्स, हमारी फूड हैबिट ऐसी है, हम ऐसी जगह सांस ले रहे हैं, ऐसी जगह एक्सपोज हो रहे हैं रेडिएशन में, हमारे काम करने की जगह ऐसी है जहां हमको बम्बार्डमेंट हो रहा है बाहर से, तो उसका असर हमारे बॉडी के ऊपर पड़ता है, स्टेम सेल के ऊपर पड़ता है। और स्टेम सेल जो हैं वो डैमेज लेते हैं, डैमेज के कारण कैंसर बनता है और वो फिर मेटासाइज करते हैं। ये सिंपल वे में आपको हम समझा रहे हैं। अब तक हम लोग सब जानते थे कि जो कैंसर स्टेम सेल है बॉडी में, उनका एसिमेट्रिकल डिवीजन होता है, केवल यही दुनिया जानती थी। अब नया रिसर्च आपको बताएंगे। अभी दुनिया यही जानती थी कि जो स्टेम सेल है वो एसिमेट्रिकली डिवाइड करता है। एक कैंसर सेल बनाएगा, एक स्टेम सेल बनाएगा और एक डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा। लेकिन अब हमको पता लग रहा है फर्दर रिसर्च से कि नहीं, स्टेम सेल जो होता है वो 3 तरीके से डिवाइड करता है। पहला तरीका जो अब सब लोग जानते थे कि स्टेम सेल जो है एक स्टेम सेल बनाएगा, एक डिफरेंशिएटेड सेल बनाएगा। लेकिन स्टेम सेल जो 2 स्टेम सेल भी बना सकता है या 2 डिफरेंशिएटेड सेल भी बना सकता है। अब ये 3 तरीके का सेल डिवीजन हो गया। इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन है पेशेंट के ट्रीटमेंट में। एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं कि जो कैंसर ओरिजिनेट होता है वो डिप्लॉयड सेल में होता है कि एन्यूप्लॉयड में होता है, और हाउ कैंसर सेल कैसे रेजिस्टेंट हो जाते हैं कभी ट्रीटमेंट में। Some of these questions are being reconsidered in the light of newer findings in cancer biology. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर बायोलॉजी। बहुत कम इंडिया में ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर कि इसकी चर्चा होती है। टाटा में होती है और जगह है, लेकिन बहुत कम सेंटर्स हैं कि जो इतना डिटेल लोग जाते हैं कैंसर बायोलॉजी में, क्योंकि नई नई चीजें इसी से निकलती हैं। अब आपको बताने जा रहे हैं, मिश्रा जी ने पूछा था कि सबसे पहले कैंसर कौन आइडेंटिफाई हुआ था, क्रोमोसोम आइडेंटिफाई हुआ था। तो ये है पीटर नोवेल एंड हंगरफोर्ड। इन लोगों ने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम, क्योंकि फिलाडेल्फिया सिटी में ये लोग थे और उन्होंने एक छोटा सा क्रोमोसोम आइडेंटिफाई किया था। पीटर नोवेल वाज माय वेरी गुड फ्रेंड, आई हैव मेट हिम, आई हैव रिटन पेपर्स आल्सो विद हिम। हंगरफोर्ड बहुत जल्दी मर गए, आई हैव नेवर मेट हिम। तो पीटर नोवेल ये 1960 में पेपर उन्होंने एक ब्लड कैंसर में बताया था कि फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम बनता है। लेकिन 1973 में जब बैंडिंग पैटर्न आया तो जेनेट रावली जो मेरी अच्छी फ्रेंड थी वो भी मर गई बेचारी कैंसर से। इसने दिखाया कि वो जो छोटा क्रोमोसोम है, इट इज बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेशन बिटवीन 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स। तो वो मैं दिखाने जा रहा हूँ। देखिए उस जमाने में ऐसे क्रोमोसोम होते थे, बैंडिंग नहीं होती थी। ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम है, दिखाई दे रहा है आपको। तो उन लोगों ने, पीटर नोवेल, हंगरफोर्ड ने बताया था ये डिलीटेड क्रोमोसोम है, लेकिन एक्चुअली इट इज नॉट डिलीटेड क्रोमोसोम। यहाँ देखिए 9, ये नॉर्मल ह्यूमन क्रोमोसोम 9 है, इस 9 में एक्स्ट्रा बैंड आया हुआ है। ये देखिए एक्स्ट्रा बैंड, ये एक्स्ट्रा बैंड क्रोमोसोम 22 का है, ये यहाँ से यहाँ गया हुआ, ये सॉरी, और ये नॉर्मल क्रोमोसोम 22 है। तो इन क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया में 922 ट्रांसलोकेशन होता है। दिस इज द फर्स्ट क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी एवर आइडेंटिफाइड इन एनी कैंसर। सॉलिड ट्यूमर में अभी धीरे धीरे हम लोग आ रहे हैं, क्योंकि सॉलिड ट्यूमर बहुत डिफिकल्ट है हैंडल करना, बिना ब्लड के सहारे हम नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम द ब्लड, और उसके ऊपर काफी हम लोगों ने काम किया है। अब हम लोग वो भी टेक्निक नहीं फॉलो करते हैं। वी हैव क्रोमोसोम स्पेसिफिक डीएनए हमारे पास है, उसको हम कलर कर देते हैं। ये ह्यूमन क्रोमोसोम 9 है, देखिए रेड कलर में, ये ह्यूमन क्रोमोसोम 22 है, येलो कलर में इसका डीएनए है। ये नॉर्मल 9 एंड 22 नॉर्मल है, लेकिन यहाँ ट्रांसलोकेशन हुआ है, लाल टूट के इसमें चला गया है, पीला टूट के यहाँ चला गया है। ये फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम देख रहे हैं आप।
and this coming from a chronic myelogenous leukemia, ये ब्लड कैंसर है उस पेशेंट का। अब हम ये करते हैं, इससे भी ज्यादा अब हम आगे चले गए, हम इंटरफेस न्यूक्लियाई लेके करते हैं, दूसरा नहीं करते। और जब कैंसर रेजिस्टेंट हो जाता है ट्रीटमेंट के, तो वो अपने जीन को आइडेंटिफाई करता है। देखिए छोटे छोटे डॉट पड़े हुए हैं या बहुत लंबा क्रोमोसोम बन जाता है। दीज आर साइकोलॉजिकल एविडेंस। डबल मैन्यूट्स होते हैं, होमोजीनियसली स्टेनिंग रीजन होते हैं, डिफरेंशियली स्टेनिंग रीजन होते हैं, या एबनॉर्मली बेंडेड रीजन होते हैं। उसमें जब ये दिखाई देता है, इसका मतलब कि कैंसर जो है एडवांस हो गया है। इस कैंसर को आप क्योर नहीं कर सकते, इसको केवल मेंटेन कर सकते हैं जब ये एबनॉर्मलिटी मिलती है। अभी नया ऑब्जर्वेशन आ रहा है कि जब आप कैंसर सेल को, नॉर्मल सेल को कायदे से प्रिपरेशन करें, तो आपको पता लगेगा कि मदर से जो 23 क्रोमोसोम आ रहे हैं, फादर के 23 क्रोमोसोम जो आ रहे हैं, वो अपना ओरिजिनलिटी मेंटेन करते हैं, क्योंकि हम इनको ट्रीट करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से, तो उनका रीअरेंजमेंट डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर कंट्रोल करें तो आपको मिलेगा कि एक तरफ एक पैटर्न का क्रोमोसोम है, दूसरी तरफ दूसरे पैटर्न का क्रोमोसोम है। तो यहाँ देखिए 15 यहाँ है, 15 यहाँ है, 18 यहाँ है और 18 यहाँ है। अब 3 क्रोमोसोम 3 यहाँ है, क्रोमोसोम 3 यहाँ है। तो एक सिमेट्री यहाँ पर है कि एक पेरेंट्स का क्रोमोसोम एक तरफ है, दूसरे पेरेंट्स का क्रोमोसोम एक तरफ है। इसके ऊपर हमारा एक फ्रेंड है ज्योति प्रकाश चौधरी, ही इज आल्सो फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर द सेम प्रोफेसर एसबी राय चौधरी। मुझसे 2 साल सीनियर है, ये जर्मनी में रहता है, वो इसके ऊपर काफी काम कर रहा है। तो सेल सिलेक्शन मैंने आपको पहले बताया था कि सेल सिलेक्शन जो है ये फिनोमिनन बहुत अननोन है लोगों को। इसके ऊपर हम लोग इस समय काम कर रहे हैं, बहुत कस के काम कर रहे हैं। आई विल नॉट ड्वेल टू मच। अब मैं दिखा रहा हूं क्रोमोसोम आपको। ये इंडिविजुअल है ह्यूमन, इसके अंदर देखिए 2 एक्स क्रोमोसोम है, 3 वाई क्रोमोसोम है, इसके में मल्टीपल सेल लाइन्स है। एंड सच पीपल डेवलप मेमोरी ट्यूमर। एक्चुअली मेल लोग मेमोरी ट्यूमर डेवलप करते हैं। ये तो मैं आपको स्लाइड दिखा चुका हूं। अब मैं आपको एक कैंसर दिखाने जा रहा हूं जो किडनी ट्यूमर है। किडनी ट्यूमर पहले हम लोग जानते थे केवल 2 किस्म का होता है, लेकिन क्रोमोसोमली वो 2 किस्म में क्या हुआ कि एक तो बच्चों में होता है जिसको बोलते हैं विल्म्स ट्यूमर, उसमें क्रोमोसोम 11 टूटता है, ठीक है। और दूसरा जो है उसको बोलते हैं एडल्ट में होता है, वो ओल्डर पीपल में से क्रोमोसोम 3 टूटता है, उसको रीनल सेल कार्सिनोमा बोलते हैं। तो इन दोनों ट्यूमर के बारे में काफी आइडिया हम लोग को थी, लेकिन अभी एक 3rd ट्यूमर निकल गया है जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी बहुत पेपर पब्लिश नहीं हुआ है। ये भी किडनी ट्यूमर है। ये 18 से 30 बरस के लोगों को होता है। बहुत अग्रेसिव ट्यूमर होता है। इसमें एक्स क्रोमोसोम इन्वॉल्व है ट्रांसलोकेशन में, और आपको हम अभी इसकी कुछ स्लाइड दिखाएंगे। तो बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी वी कैन डिवाइड ए पर्टिकुलर ट्यूमर टाइप इनटू डिफरेंट सब ट्यूमर टाइप्स, और उसका ट्रीटमेंट अलग होगा। यहाँ देखिए ये मेटाफेज प्लेट है एक रीनल सेल कार्सिनोमा का। इसमें क्रोमोसोम 3 देखिए ये टूटा हुआ है, इसका टूटा पार्ट यहाँ बैठा हुआ है, स्पॉन्टेनियसली टूटा है, किसी ने तोड़ा नहीं है। ये नॉर्मल है क्रोमोसोम देखिए। तो ब्लड में ये सब मिल सकता है आपको, अगर ब्लड को आप बहुत केयरफुली स्टैब्लिश करें, उसको स्टडी करें, तो हर किसी के ट्यूमर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं बिफोर ट्यूमर होने के। ये दूसरा पेशेंट है, यहाँ पर लार्ज मेजॉरिटी ऑफ केसेस में उसके क्रोमोसोम 3 नॉर्मल है, 21 नॉर्मल है, लेकिन स्मॉल परसेंटेज में देखिए ये नॉर्मल नंबर 3 है, ये 3 टूट गया है, 21 में हुकअप हो गया है। देखिए रीनल सेल कार्सिनोमा ये ब्लड में है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पेपर मैंने पब्लिश किया था साइंस में, ये पेपर साइंस में पब्लिश है, जो डायरेक्ट ट्यूमर मैंने लिया, थैंक यू, डायरेक्ट ट्यूमर मैंने लिया था पेशेंट से, और उसका डायरेक्ट क्रोमोसोम बनाया। बनाने के बाद क्रोमोसोम देखा मैंने, तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल दोनों तरीके की एबनॉर्मलिटी है। 3-3 कॉपी, 3-3 कॉपी, 3-3 कॉपी, 1 कॉपी, और यहाँ स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी। तो यहाँ क्रोमोसोम 3 नॉर्मल है, ये 3 टूटा हुआ है, और ये आके हुकअप हो गया है इस क्रोमोसोम से। ये पोर्शन जो है एक ये इससे हुकअप हो गया है, देख रहे हैं आप। तो क्रोमोसोम 3 का पार्ट टूट गया है, और इसको हमने साइंस में पब्लिश किया इस पेपर को, और 1982 में। उसके बाद हजारों केसेस पूरी दुनिया में लोगों ने किया, एंड दे कंफर्म दैट द कल्प्रिट फॉर रीनल सेल कार्सिनोमा, एडल्टहुड रीनल सेल कार्सिनोमा, is present on chromosome 3.
तो जहां क्रोमोसोम 3 की एबनॉर्मलिटी मिलती है ब्लड में, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दिस इज फॉर दैट। लेकिन एक मिडिल ग्रुप जो मैंने आपको बताया उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अब ये देखिए पेरिफेरल ब्लड में मिला है ये जो तीसरा ग्रुप बन रहा है मिडिल ग्रुप, इसमें देखिए क्रोमोसोम नंबर 1 गायब हो गया है, लेकिन ये टूट के एक्स क्रोमोसोम में हुकअप हो गया है। और ये फीमेल का ब्लड है, 2 एक्स क्रोमोसोम है इसमें, देखिए एक नॉर्मल एक्स है, दूसरे एक्स में क्रोमोसोम 1 टूट के लग गया है, देखिए। और ये सेल लाइन बनाई गई है एक मेल से, उसी ट्यूमर के मेल से सेल लाइन बनाई गई है। तो सेल लाइन में देखिए 2 नॉर्मल कॉपी क्रोमोसोम 1 की है, दूसरा टूट गया है, आके यहाँ एक्स क्रोमोसोम में हुकअप हो गया है, यहाँ वाई क्रोमोसोम है, देखिए ये सेल लाइन है। उसको हम और तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बड़े टेक्निक हमारे पास है, क्रोमोसोम को कलर कर सकते हैं। ये एक्स 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 देखिए ट्रांसलोकेशन हुआ है यहाँ पर, क्रोमोसोम 1 का एक्स से ट्रांसलोकेशन है। ये दूसरा फीमेल पेशेंट है, उसका ब्लड है, अगेन देखिए आप यहाँ देखिए एक एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल है, दूसरे में क्रोमोसोम 1 टूट के लगा हुआ है। पीबीएल मींस पेरिफेरल ब्लड कल्चर, ट्यूमर नहीं है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम इंटरफेज न्यूक्लियाई देखते हैं, हमको पूरा क्रोमोसोम देखने की जरूरत नहीं है। तो क्रोमोसोम एक्स पर वो जीन मैप्ड है यहाँ पर, तो उसका फ्लैंगिंग सीक्वेंसेस का डीएनए हमको मालूम है, उसको हम रेड कलर में बना देते हैं, ग्रीन कलर में बना देते हैं। इंटरफेज में हम उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, टेक्निकली इसको बोलते हैं फिश टेक्निक, फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। जब हम करते हैं तो एक न्यूक्लियस ये है, देखिए यहाँ दोनों रेड और ग्रीन जो कलर है दोनों साथ है, इसका मतलब यहाँ कोई डिफेक्ट नहीं है, इसमें भी कोई डिफेक्ट नहीं है, क्रोमोसोम में भी कोई डिफेक्ट नहीं है, मेटाफेज प्लेट है। लेकिन इस इंटरफेज न्यूक्लियस में देखिए कि रेड अलग है, ग्रीन अलग है, इसका मतलब कि ये डिफेक्टिव सेल है, इसका मतलब इसमें क्रोमोसोम एक्स जो है टूटा हुआ है। अब आपको एक फीमेल का दिखाते हैं, वही चीज फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम होता है। तो इस सेल में आप देखेंगे कि रेड ग्रीन एक जगह है, रेड ग्रीन एक जगह, 2 एक्स क्रोमोसोम नॉर्मल, यहाँ देखिए एक्स और में एक नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे में सेपरेट है, इसका मतलब कि यहाँ डिफेक्टिव है, क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम टूटा हुआ है। तो बेस्ड ऑन दिस वी कैन आइडेंटिफाई वेरी इजिली। ये कैरियोटाइप है बड़े प्रोफेसर की, जो इसका स्टूडेंट हमारा कलीग था, एंड ही टीचेस ड्रोसोफिला सम अदर प्लेसेस, ही केम टू लर्न ह्यूमन क्रोमोसोम। तो उसका ब्लड कैरियोटाइप किया हम लोग, तो उसका एक क्रोमोसोम 14 देखिए ट्रांसलोकेट होके 13 में हुकअप हो गया, देखिए। तो उसके हर सेल में 45 क्रोमोसोम मिल रहा है। वी रोट अ पेपर इन 1972-73 समटाइम्स बैक। ऐसे इंडिविजुअल जो होते हैं उनके में बर्थ डिफेक्ट पैदा होता है, बच्चे एबनॉर्मल पैदा होते हैं। और अब हम लोग पता लगाए हैं कि डिपेंडिंग ऑन द ब्रेक पॉइंट उसमें कैंसर भी डेवलप होता है। अब यहाँ देखिए 2 फैमिली के अलग अलग हैं, पार्शियल कैरियोटाइप, एक में 13-14 ट्रांसलोकेशन है, एक में 9-14 ट्रांसलोकेशन है। लेकिन क्रोमोसोम 14 जो अपसाइड डाउन यहाँ लिखा हुआ है, ब्रेक पॉइंट उसी जगह पर है, जस्ट बिलो द सेंट्रोमियर। इसमें भी ब्रेक पॉइंट क्रोमोसोम 14 का यहाँ पर है, लेकिन 9 का ट्रांसलोकेशन है। इट डज नॉट मैटर व्हाट इज द अदर पार्टनर, चाहे 13-14 हो, 9-14 हो, एनी अदर क्रोमोसोम, बट इसका जो डिफेक्टिव जीन है इस डिजीज का, टी सेल लिम्फोमा, वो क्रोमोसोम 14 पर है। तो जिसके अंदर ये एबनॉर्मलिटी हमको मिलेगी, वी कैन टेल वेरी इजीली दैट इसको ये कैंसर होगा। अब मोडेलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट, सर्जरी है, कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, इम्यूनोथेरेपी है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है, सेल थेरेपी जिसमें हम बोन मैरो ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी भी हमारे यहाँ हो रही है, योगा प्राणायाम सब हमारे यहाँ सिखाया जा रहा है यहाँ पर कैंसर पेशेंट को। इवन म्यूजिक थेरेपी हमारे यहाँ चल रही है। अब अगर बच्चे जो यंग एज में हैं, अगर उनको एक्सपोज किया जाए कार्सिनोजन में, अगर वो सिगरेट पीना शुरू करे या बीड़ी पीना शुरू करे या शराब पीना शुरू करे, तो उनको क्या होगा, उनके कैंसर की क्या दशा होगी, उसका एनिमल मॉडल हम आपको बताने जा रहे हैं। ये एक एनिमल है मोनोडेल्फिस डोमेस्टिका, एक मार्सुपियल है, इसमें क्रोमोसोम नंबर 18 होता है। इनको रेडिएट करने से इसको स्किन कैंसर हो जाता है। ये उसके बच्चे हैं, देखिए ये बच्चे हैं मदर के, और ये इसके बच्चे क्लिंग किए हुए हैं, ये इंटेस्टाइन बाहर नहीं है, ये बच्चे हैं जो क्लिंग किए हुए हैं माउथ के अंदर, ये बच्चे दूध पी रहे हैं। इनको जब हम रेडिएट करते हैं, इन बच्चों को अपनी उंगली पर लिए हुए हैं, देखिए एक बच्चा छोटा सा है, क्योंकि ये बेबी मार्सुपियल जो है
एक्चुअली मार्सुपियम में डेवलप होते हैं। इस बच्चे को अगर हम रेडिएट करते हैं तो इसमें कैंसर बहुत जल्दी डेवलप होता है कंपेयर टू ए फुल्ली ग्रोन एनिमल। तो अगर हम यंग एज में अपने सिस्टम को अगर हम डैमेज करेंगे, एक्सपोज करेंगे बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, तो हमको 5-10 बरस बहुत जल्दी कैंसर हो जाएगा। वो यहाँ दिखाई दे रहा है, इस स्पीसीज में कैंसर हो गया है। देखिए ये इस तरीके का स्किन कैंसर है उसका। अब टीलोमियर में हम जा रहे हैं। ये एक डायग्रामेटिक स्केच है क्रोमोसोम का। टीलोमियर एंड पर दिखाया गया है। इट इज ए स्पेशलाइज्ड डीएनए एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इट प्रोटेक्ट्स द क्रोमोसोम। दिस इज द गार्डियन ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम। ये गार्डियन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गार्डियन प्राइम मिनिस्टर का होता है, चीफ मिनिस्टर का होता है, वैसे क्रोमोसोम का एक गार्डियन है। और इसके डिफेक्ट, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर भी जानते हैं, TTA GGG, TTA GGG, मेनी टाइम्स इट इज रिपीटेड, इट इज ऑलरेडी रिटन ओवर हियर। तो इसकी डिस्कवरी भी हमारे एक स्टूडेंट ने जो PhD MD एडिसन से की थी, वो लॉस एलमस लेबोरेटरी में गई अल्बाकर्की में, और वहां उसने आइडेंटिफाई किया इसका सीक्वेंस। और टीलोमियर इज नॉट ए न्यू वर्ड, इट वाज कॉइन्ड बाय हर्मन जोसेफ मुलर, हु वाज ए नोबेल लॉरिएट। 1910 में इन्होंने ये कॉइन किया था टर्म टीलोमियर। टीलो मीन्स एंड बॉडी। तो मुलर के अंडर में ही मेरे प्रोफेसर जो SP राय चौधरी, जिनका फोटो मैंने दिखाया इनिशियली, PhD किए थे इनके अंडर में। Then he was receiving his PhD work, Nobel Prize. He quoted the work of my professor. वो लेक्चर मैंने सुना है। और उन्हीं के कंटेम्पोररी थी बारबरा मैकलिंटॉक। She provided the experimental evidence। अगर टीलोमियर को आप चॉप करोगे रेडिएशन से, तो क्रोमोसोम जो है हुकअप हो जाएंगे। They will follow ब्रेकेज फ्यूजन ब्रिज साइकिल। और बारबरा मैकलिंटॉक को भी बहुत देर बाद नोबेल प्राइज मिला फॉर जंपिंग जीन, इसने खोजा है। तो दोनों नोबेल लॉरिएट हैं यहाँ पर, एंड दे हैव मेजर कंट्रीब्यूशन इन द एरिया ऑफ टीलोमियर बायोलॉजी। अब टीलोमियर जो छोटा सा स्ट्रक्चर है, वो बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है। ये देखिए एक फोल्डिंग स्ट्रक्चर ऐसा, उसके अंदर इतने प्रोटीन बनाने वाले जीन्स पड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट आई एम लर्निंग नाउडेज। सो आप प्रोब ले लीजिए और एक मेटाफेज प्लेट के ऊपर अगर प्रोब को आप फिश बनाइए, तो ये रेड कलर जो एंड में दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम के एंड में, ये टीलोमियर है। देख रहे हैं आप, इंटरफेज में भी दे सकते हैं, इंडिविजुअल क्रोमोसोम में भी दे सकते हैं। और ये जो मेटाफेज प्लेट है, ये 17 ईयर्स ओल्ड हाई स्कूल किड का है। हाई स्कूल के बच्चे हमारे अस्पताल में आते हैं, समर में उनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उसका क्रोमोसोम है। देखिए हर क्रोमोसोम को देख लीजिए, हर क्रोमोसोम में रेड कलर दिख रहा है आपको। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक दूसरा मेटाफेज ब्लड का, जिसमें ईसा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। दिख रहे हैं आप, कहीं एक ही दिख रहा है, कहीं एक ही दिख रहा है। यू विल नॉट बिलीव, दिस इज माई क्रोमोसोम्स, मेरा ब्लड का बनाया हुआ। When I was 70 years old, at that time this picture was made. Today I am 81 years old, but I lead a sattvic life. Vegetarian हूँ मैं, कुछ पीता नहीं हूँ, कुछ मीट नहीं खाता हूँ, शराब नहीं पीता हूँ। So I am okay at the age of 81. तो देखिए यहाँ जो टीलोमियर सीक्वेंस है, वो बुढ़ापा में कम होने लगता है। इसको मैं डिटेल बताऊंगा बाद में। अब टीलोमियर के अंदर भी हम चले गए हैं, एंड में भी अंदर चले गए हैं, और एंड में आप देखेंगे कि एक जो है लाल है, एक ग्रीन है। ये कहानी मैं आपको बताऊंगा बाद में, जब दूसरा लेक्चर दूंगा तब। तो हम लोग बहुत डिटेल जा रहे हैं। अब क्या होता है कि दो क्रोमोसोम जब हुकअप करते हैं, तो कभी कभी इन टोटो हुकअप करते हैं, तो एक सेंट्रोमियर इनएक्टिव हो जाता है। ये आइडिया हम लोगों ने बहुत पहले दिया था। मेनी पीपल डिड नॉट बिलीव, बट नाउ पीपल बिलीव दिस आइडिया। इस इंडिविजुअल में 2 एक्स क्रोमोसोम फ्यूज हो गए हैं। ये देखिए 2 एक्स क्रोमोसोम फ्यूज, ये नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम रखा हुआ है। टीलोमियर, सेंट्रोमियर यहाँ है, सेंट्रोमियर यहाँ है, लेकिन एक सेंट्रोमियर इनएक्टिव है। देखिए यह कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये सेंट्रोमियर एक्टिव है। ये नई आइडिया हम लोगों ने दिया। उसको दूसरे तरीके से भी आप दिखा सकते हैं। जो कुछ पेशेंट जो है एक तरीके का एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं, और उस एंटीबॉडी से अगर हम क्रोमोसोम को स्टेन करते हैं, तो जो इनएक्टिव सेंट्रोमियर होता है वो डल होता है। ये देखिए इनएक्टिव सेंट्रोमियर, यही वो क्रोमोसोम है 9-11 ट्रांसलोकेशन, और ये एक्टिव सेंट्रोमियर है। और ये पिक्चर जो है इस पुस्तक के फ्रंट पीस पर पब्लिश है, वही ये क्रोमोसोम देख रहे हैं आप ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल
इसके ऑथर हैं जेम्स डी वाटसन, नोबेल लॉरिएट हु डिस्कवर्ड द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, इनको नोबेल प्राइज मिला है। इसके ऊपर ये मेरे मास्टर डिग्री स्टूडेंट का पिक्चर पब्लिश है, देखिए आप। तो आई फील वेरी प्राउड ऑफ माय स्टूडेंट्स। ये मास्टर डिग्री स्टूडेंट का काम है, उसके फ्रंटिस पीस पर एक पिक्चर पब्लिश देख लीजिए। तो हम लोगों ने काफी बेसिक रिसर्च किया है यहाँ पर। नाउ टेलोमेयर डायनेमिक्स इज इन्वॉल्व इन स्पेसिएशन, जीन रेगुलेशन, मेंटल रिटार्डेशन, बोन मैरो ट्रांसप्लांट, फाउंटेन ऑफ यूथ, एजिंग, सारी चीजों में, इनफर्टिलिटी, काफी चीजों में गया हुआ है। वन कैन डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। अब टेलोमेयर के बारे में थोड़ी कहानी आपको बता दें, नहीं आई विल स्किप दिस, अदरवाइज आई विल नॉट हैव टाइम। अब क्या होगा कि 3 कंपनीज इस समय काम कर रही हैं। अब आप अपना ब्लड जैसे डॉक्टर को देते हैं तो आपका टेलोमेयर भी मेजर होगा, जैसे वो उसमें प्रोटीन मेजर करते हैं, डिफरेंशियल ब्लड कैप्सूल्स को मेजर करते हैं, अब आपका टेलोमेयर भी मेजर होगा। तो एक कंपनी है स्पेन में, मेरी ब्लास्को चला रही है, उसका नाम है लाइफ लेंथ। और एक कंपनी है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न चला रही है कैलिफोर्निया में, उसका नाम है टेलोम हेल्थ, चार्ज भी उनका लिखा हुआ है। ह्यूस्टन में एक कंपनी है, आई डोंट नो दिस गाय बट ही इज इन ह्यूस्टन, वो स्पेक्ट्रा सेल एक कंपनी चलाता है, वो भी टेलोमेयर मेजर करता है। तो फ्यूचर में ये टेक्नोलॉजी इंडिया में जाएगी, जब आप ब्लड देंगे किसी डॉक्टर को तो वो आपका टेलोमेयर भी मेजर करेगा और आपके एज के अनुसार वो बताएगा कि आपका टेलोमेयर इतना होना चाहिए, वो कम हो गया है या ज्यादा हो गया है। सो दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ योर हेल्थ, सेलुलर हेल्थ। तो ये टेक्नोलॉजी जाएगी इंडिया में। ये है एलिजाबेथ ब्लैकबर्न, नोबेल लॉरिएट, उसको मैंने बुलाया था एमडी एंडरसन में लेक्चर देने के लिए। तो आप पहचान रहे हैं कि कौन उससे बात कर रहा है इस समय। तो एलिजाबेथ से मैं बात कर रहा हूँ टेलोमेयर के बारे में ही काफी। और ये तो एक समरी है उसकी हल्की सी। अब थोड़ा एरिया हमारे बॉडी में जो है, जो कैंसर सेल बनते हैं, वो उनका ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, ये नया एरिया है। इसको भी मैं स्किप करूंगा क्योंकि बहुत टाइम ले लिया हूं मैंने। अब मैं टेलोमेयर को रोक रहा हूं, ये बेसिक रिसर्च है, ये सारा मैं रोक रहा हूं। और यहाँ एक हाइपोथेसिस है, टेलोमेयर एम्प्लीफिकेशन इज अ बायोमार्कर फॉर कैंसर मेटास्टेसिस एंड थेरेपी। टेलोमेयर एरोजन प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन सेल डेथ। ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। आई एम कटिंग ऑल दिस बिकॉज देयर इज नॉट मच टाइम लेफ्ट। अब मैं आ रहा हूँ क्रोमोसोम का यूज थोड़ा सा सेल लाइन आइडेंटिफिकेशन में भी है। एक सेल लाइन है जिसको बोलते हैं हीला सेल लाइन। इस लेडी के सर्विक्स से टिश्यू निकाला गया था, उसका नाम था हेनरिटा लैक्स, और ये सबसे पहली ह्यूमन सेल लाइन है, 1952 में स्टैब्लिश की गई थी। इसके सर्विक्स से निकाला गया था। तो सब लोग बोलते हैं सर्विकल कार्सिनोमा। आई हैव चेंज्ड द पैथोलॉजी ऑफ दिस ट्यूमर। शी वाज सफरिंग विथ ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअली। और ये हमारा पेपर है 79 में पब्लिश है। इस पेपर के लिए हमको काफी इंसल्ट भी किया गया था, लेकिन आज सब लोग मान रहे हैं इसको। इससे सेल लाइन भी बनी है, ये सेल लाइन है MDA MB468। और यहाँ हमने लिया है हीला के मार्कर क्रोमोसोम और अपने पेशेंट के मार्कर क्रोमोसोम के लिया। देखिए दोनों की बेंडिंग कैसी मिल रही है। ये हीला है, ये डी है, हीला डी मीन्स डोरथी, उसका फर्स्ट नेम डोरथी था। सारे मार्कर मिल रहे हैं लेकिन कुछ मार्कर अलग अलग हैं। तो क्रोमोसोम से हम लोगों ने पैथोलॉजी चेंज कर दी है ये हीला की। ये 51 में ओवेरियन कार्सिनोमा ऑफ द सर्विकल कार्सिनोमा था, 87 में हमने चेंज करके इसको एडेनोकार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट बना दिया। अब कैंसर प्रिवेंशन में हमारा क्रोमोसोम बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको करके हम बता सकते हैं कि कैंसर प्रिवेंशन क्यों जरूरी है। एमडी एंडरसन पहले नहीं करता था, बट विद इन लास्ट 15 years दे हैव ओपन ए बिग डिवीजन ऑफ कैंसर प्रिवेंशन। और उसमें कम से कम 200-300 आदमी काम कर रहे हैं कैंसर प्रिवेंशन के ऊपर। क्या क्या आइडियाज है, कैसे सिगरेट पीना छोड़ा जाए, कैसे ये छोड़ा जाए, कैसे ये छोड़ा जाए। तो ये एक तरीके का समरी दिखा रहा है गुड कर्मा एंड बैड कर्मा के ऊपर। तो कैंसर इज प्रिवेंटेबल डिजीज दैट रिक्वायर्स मेजर लाइफस्टाइल चेंजेस एंड प्रैक्टिस ऑफ गुड कर्मा। इतना ही यहाँ से बताएंगे। और कुछ कैंसर से रिलेटेड बड़े सारे क्वेश्चंस हैं, वी आर ट्राइंग टू आंसर। ये बड़े फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस हैं, वी आर ट्राइंग टू आंसर। वेदर साइकोलॉजिकल selfishness due to lack of mastery over tissue
could itself be the basic cause of cancer. We don't know anything. जो पावर ऑफ माइंड है, उसके बाद ये तो हम बताए आपको को ट्रांसफॉर्म सेल जो डिमन सेल होते हैं उनको मारना बहुत जरूरी है. हाउ पावरफुल आर आवर थॉट्स? कैन इट बी मोर पावरफुल देन आवर जीन्स? कैन द mindset modify mutated gene, these genes? Is it possible to identify, or you can mutate your gene by mindset? Is cancer a manifestation of weakness of mind or the coping skill of the mind? Can you prevent the progression of the disease by changing your mindset or lifestyle? Has anyone cured her or his cancer through mind management techniques? Where is the knowledge coming from? These are the questions we need answer. Again, patient बॉम्बे से आया हुआ है. ये रिमाइंडर है, इस सिगरेट पीने से और पान पराग खाने से ये आपको हेड एंड नेक कैंसर होगा और इससे आप बच नहीं सकते हैं. सब इंडियन पेशेंट हैं. एंड व्हाट शुड बी आवर फूड एंड ड्रिंक? मैं इलाहाबाद में था, जिसको प्रयाग बोलते हैं, सॉरी, और वहाँ स्वामी जी मेरे लेक्चर दे रहे थे. तो वहां मैंने उनसे रिक्वेस्ट करा कि आप व्यासपीठ से बैठ के जरा इसके बारे में बात करेंगे तो लोगों के ऊपर असर पड़ेगा. मैं बोलूंगा तो नोबडी विल बिलीव. तो स्वामी जी ने लेक्चर दिया, लेकिन मैं आपको एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन बता रहा हूँ कि लोग पूछते हैं कि क्या खाना चाहिए, सब खाने से तो कैंसर हो रहा है. तो उसका उत्तर हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है. हित भूख, मित भूख, ऋत भूख लिखा हुआ है कि जो हमारे बॉडी के लिए हितकारी है वो खाइए, अल्प मात्रा में खाइए, और ऋत भूख, ऋतु के अनुसार जो फल फूल मिल रहा है, या दूसरा इसका मतलब है कि धर्म के रास्ते पर चल के जो पैसा आप कमाते हैं, किसी का गला दबा के नहीं, धर्म के रास्ते पर चल के जो पैसा कमाते हैं उससे जो खरीद के चावल दाल खाएंगे वो ऋत भूख है, उससे आप बचेंगे. हियर वी शुड कंसिडर त्रिदोषा. कहने का मतलब कि हमारे एमडी नर्सन में एक 16 स्टोरी नई बिल्डिंग बनी है पर्सनलाइज कैंसर थेरेपी के ऊपर. और मैं आपको बता रहा हूं कि आयुर्वेदा में जितना ट्रीटमेंट होता है वो पर्सनलाइज्ड होता है. दैट इज डिपेंडेंट ऑन वत्ता, पित्ता, काफा. तो इसमें जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट होता है उसके बल पर उसका ट्रीटमेंट आयुर्वेदा में लोग देते हैं, ऐसा मैंने सुना है. और इसका रिलेशनशिप हमारे सत्व, राजस, तामस जो फूड है उससे भी है. तो यू कैन इमेजिन वेरी वेल. और फूड मस्ट बी स्पिरिचुअली चार्ज्ड एंड मस्ट हैव ऑल 6 रसाज. स्वीट होना चाहिए, सावर होना चाहिए, साल्टी होना चाहिए, पंजेंट होना चाहिए, बिटर होना चाहिए, और ये काश्य होना चाहिए. फूड ब्रॉट विथ रिलीजियसली अर्न मनी इज द रितहार which will make you healthy. When जो लोग अननेसेसरी लोगों का गला दबा के खाना बनाते हैं उनको बहुत कैंसर होता है. आपको मैं बता दूं इस चीज को, मेरे पास प्रूफ है. When food consumed mindfully and with reverence, the body is filled with healthy serenity, validity, hope and joy. स्टोरी ऑफ प्रयागराज, ये मैंने आपको बता दिया स्वामी जी से. स्वामी जी ने कहा मेरे को लेक्चर देने के लिए, तो मैंने 2 लाइन बोला केवल वहां स्टेज पर जाके. ये बोला मैंने कि व्हाट एवर यू कैन ऑफर टू गॉड, प्रसाद रूप में जो आप भगवान को चढ़ाते हैं वही आप खाने के अधिकारी हैं. अगर आप भगवान को गाय का मीट चढ़ा सकते हैं तो आप मीट खाइए, कोई हर्जा नहीं, लेकिन आप भगवान को नहीं चढ़ा सकते हो. तो व्हाट एवर यू कैन ऑफर टू गॉड, दैट इज व्हाट यू कैन ईट. एंड व्हाट एवर यू कैन ऑफर टू गॉड एज ए पेय, दूध, पानी, जल, तो आप भगवान को चढ़ा सकते हैं. आप शराब नहीं चढ़ाएंगे भगवान को, तो वो आप पीने के अधिकारी हैं. यही मैंने बताया. तो हमारा फंडामेंट्स ऑफ गुड हेल्थ क्या होना चाहिए? फ्रेश एयर, प्योर वाटर, रेगुलर बैलेंस आहार, जिसके लिए वर्ड यूज किया गया, आहार होना चाहिए. हमको थोड़ी एक्सरसाइज करनी चाहिए, 30-40 मिनट्स पर डे वॉक करना चाहिए. इस समय मैं नहीं कर रहा हूं, मेरे को करना है. और एक एडिक्वेट स्लीप होना चाहिए, और वेजिटेरियन डाइट होना चाहिए. Those people who are vegetarian develop much less cancer than people who are non-vegetarian. और ये मैंने बता दिया आपको, हित भूख, मित भूख, ऋत भूख, हेल्थ इज द वेल्थ. और ये स्टोरी जो
इसको आप लोगों ने देखा होगा। मैंने उस समय देखा था जब इंडिया में रिलीज नहीं हुई थी, अमेरिका में 6 महीने पहले रिलीज होती है मूवी। तो इस पर मैंने एक लेक्चर बहुत बड़ा तैयार किया है एजिंग एंड कैंसर के ऊपर, वो मैं बाद में लेक्चर दूंगा। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और इतना कहूंगा, the real cause of death is birth, not cancer, not drowning, not fire, nothing. एक दिन सबको मरना है। धन्यवाद। Thank you, Professor Pathak. Thank you. On the behalf of Indology Foundation, it is my great honor and privilege to propose vote of thanks. My heartfelt gratitude and respect for our distinguished special guest, Honorable Professor Dr. Sen Pathak. Thank you for taking out time for us and to grace this event with your presence. We feel enlightened with your speech on the subject. Thanks to you for clearing our concept and enhancing our understanding pertaining to the cancer. You have intended put best of your efforts to make this event unforgettable event. Really, we are very highly obliged to you. Thanks to you, sir. Thanks. Thank you, sir. Thank you.